Yes, sir. So we can see your screen, but we cannot hear you. अस्सलाम वालेकुम। Yes, sir. Now it's थैंक fine. यू सर। आवाज आ रही है सारों को? Yes, sir. बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी. जी सर, ओके, आ रही थैंक है यू। आवाज। Okay, thank you. Today our topic of CPD is how to publish in high impact factor journals. अजीज साहब ने ऑलरेडी मेरा इंट्रोडक्शन करवा दिया है, तो we will go to the slides. Audience for today topic is postgraduate students, early career researchers, faculty members, but not for experienced researchers and faculty members. आज के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, first we will discuss how logically organize your ideas throughout your manuscript so your readers clearly understand the impact of your study. Secondly, how an effective publication strategy can be adopted so you are publishing in the most appropriate journal to reach your target audience. And the third will be how you can able to successfully navigate peer review to improve the quality of your paper and publish more quickly. How to promote your research, the fourth one, to increase readability of your research. This is very important. How to avoid predatory journals. So we have 5 learning objectives for today that we will cover in our today's session. First question is that why it is important to publish in high impact factor journals? Because we need a greater visibility of our research findings, increased chances of citations, greater recognitions among peers, associated benefits such as promotion, accreditation, tenure, research assessment, institutional ranking. The most common research article types that we used are full-length research articles, are original articles. Second one is letter, rapid communication, short communication, and the third one is review paper or survey paper. The first one is full-length articles is the most important papers. Often we summarize our original piece of work in that kind of papers. And the second one is letter, rapid communication, short communication. We mostly try to publish our early results quickly in this kind of letters. And the review papers are used to summarize the recent development on the specific topic. We usually use the existing literature to summarize it in a novel way. 5 tips for getting published. First one is know your field, pick the right journal, write well, follow the submission rules, and accept the feedback and revise. Okay, we should be an effective communicator. Your goal is not only to be published, but also to be widely read in your field. So first one is the title, research trend, your topic selection. Second one is the logical manuscript structure, your paper writing. And the third one is the efficient publication strategy. Fourth one is successful journal submission. And the fifth one is presenting your research. Question to answer before you write. Think about why you want to publish your work. Is it new and interesting? Is it a current hot topic? Have you provided solution to some difficult problems? Are you ready to publish at this point? If all answers are yes, then start preparation your manuscript. Practical advice. ओके, आगे प्रेजेंटेशन जो मेन हमारा थीम है वो स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस और जो क्वेश्चंस है वो काइंडली आप नोट डाउन करें. एट द एंड आई विल एंटरटेन ऑल द क्वेश्चंस. फर्स्ट वन इज द सिलेक्शन ऑफ योर टॉपिक. मोस्टली आई वुड रिकमेंड कि आप जिस फील्ड में या जो एरिया ऑफ आपका इंटरेस्ट है उसकी जो जर्नल्स में आप अपना ईमेल जो है उसके अलर्ट्स आप जारी करें. डिफरेंट जर्नल्स, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस में आप अपना ईमेल रजिस्टर करवाएं. जो आपको जो भी न्यू इनोवेशंस होती है या न्यू पेपर आता है आपके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड, तो वो आपको अलर्ट्स आ जाते हैं. या दूसरा तरीका ये कि सिमेंटिक स्कॉलर्स और गूगल स्कॉलर्स या जिस तरह मेडिकल का NCBI, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेटाबेसेस है जिसको रिसेंट पब्लिश वर्क को आप सर्च आउट कर सकते हैं.
उसके बाद फिर आप जर्नल सेलेक्ट करते हैं और जर्नल की मजीद जो डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। लेकिन फर्स्ट वन इज अबाउट योर टाइटल सिलेक्शन, योर टॉपिक सिलेक्शन। कि आप जब पीजी स्टार्ट करते हैं या कोई भी आप न्यू पेपर लिखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो करंट ट्रेंड चल रहे हैं कि हॉट टॉपिक ऑफ रिसर्च या करंट रिसर्च क्या चल रही है, तो उसमें गूगल ट्रेंड से आप देख सकते हैं। या सेमेंटिक स्कॉलर्स, ये एक बहुत अच्छा डेटाबेस है, मैं आप लोगों को ये शो भी करवाऊंगा एट द एंड। तो उसके थ्रू या डिफरेंट जो लेटेस्ट जर्नल्स है, हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स है जिस तरह नेचर के हैं, उसमें आप अपना ईमेल जो अलर्ट्स के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं कि जितनी भी आपकी फील्ड से रिलेटेड जो अलर्ट्स होगी वो आपको रिसीव हो जाया करेगी। सेशन वन इज द लॉजिकल मैन्युस्क्रिप्ट स्ट्रक्चर। पहला सेशन कॉमन एरर्स जो हम पेपर राइटिंग के दौरान करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट, नॉट प्रेजेंटिंग ऑल इन्फो। एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखते हैं, वी विल डिस्कस लेटर। इंट्रोडक्शन में हम नो जर्नल इन्फो फॉर न्यू रिसर्चर्स, नॉट एनफ literature review not related to the topic, not clear problem statement, no objective। एक पेपर का जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो उसमें हम ये चीजें मिस कर देते हैं। एक्सपेरिमेंटल में इसी तरह नीड टू हेल्प रीडर टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्सपेरिमेंट यू हैड डन। रिजल्ट्स एंड डिस्कशन में ओनली एनालिसिस हम कर देते हैं, नो डिस्कशन और कंपैरिजन और समरी। और कंक्लूजन में हम किसी फाइंडिंग्स का जिक्र नहीं करते, रेफरेंसेस में कंसिस्टेंसी नहीं होती। तो ये जस्ट कॉमन एरर्स है कि कोई भी न्यू अर्ली केयर रिसर्चर जब अपना पेपर लिखता है तो इन चीजों को मिस कर देता है। जिस तरह से हमने पहले भी बात की कि बहुत माइनर सी गलतियां होती है जिसकी वजह से हमारा पेपर रिजेक्ट हो जाता है, और सेम उसी तरह का पेपर आपको पब्लिश नजर आ रहा होता है। सो योर रीडर हैव 4 की क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज व्हाई डिड यू डू द स्टडी, what did you do, and the third one is what did you find, fourth one is how does the study advances the field। यानी पेपर लिखते हुए ये 4 क्वेश्चंस जो रीडर के जहन में है, ये राइटर के जहन में होना चाहिए। क्योंकि आप जब लिखते हैं आप अपने लिए नहीं लिखते हैं, आप रीडर्स के लिए लिखते हैं। तो आपने रीडर्स के क्वेश्चन को एड्रेस करना है। फर्स्ट वन इज व्हाई डिड यू डू द स्टडी, दिस विल बी योर इंट्रोडक्शन। व्हाट डिड यू डू, this will be your methodology. What did you find, that will be your results. How does the study advance the field, that will be discussion on your results। यानी जब भी आप पेपर लिखते हैं तो आपका जो मेन सेक्शन है पेपर का, जिस तरह हम कहते हैं कि जो मेन टेम्पलेट होता है पेपर का, उसमें टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट, डिस्कशन, कंक्लूजन, रेफरेंसेस। लेकिन जो मेन जो रीडर्स देखता है ना कि व्हाई डिड यू डू द स्टडी, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसमें इश्यूज क्या है, लिमिटेशंस क्या है जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं, आपने क्या मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की है, और आपने क्या फाइंड किया है, आपके रिजल्ट्स क्या है, और उस पर आपकी डिस्कशन होनी चाहिए एग्जिस्टिंग लिटरेचर से कंपैरिजन में कि आपके रिजल्ट्स कितने अच्छे, कितने बुरे हैं और कितने ऑथेंटिक है। इंट्रोडक्शन, अब इन चारों सेक्शंस को हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। इंट्रोडक्शन, व्हाई डज योर स्टडी नीड टू बी डन, यानी उसमें जब आप टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाएंगे, इंट्रोड्यूस द टॉपिक वर्ल्ड वाइड, रीजनल रिलेवेंस, ब्रॉड, स्पेशलाइज्ड ऑडियंस। आपने टारगेट करना है कि आपका जो टॉपिक है वो रीजनल इंपॉर्टेंस के हवाले से आपने सिर्फ रीजनल नेशनल ऑडियंस को टारगेट करना है या इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड आपने टारगेट करना है। तो अकॉर्डिंगली आपने अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाना है। फॉर एग्जाम्पल किसी डिजीज के बारे में आप लिखते हैं, जिस तरह कोविड है, तो कोविड के बारे में अगर आपने पाकिस्तान का जस्ट कोई वो समरी प्रेजेंट करनी है तो आपने स्टेटिस्टिक्स पाकिस्तान के उठाने हैं। अगर आप वर्ल्ड वाइड बात कर रहे हैं तो आपने वर्ल्ड वाइड स्टेटिस्टिक्स उठाने हैं। इंट्रोड्यूस द टॉपिक ब्रॉडली। उसके बाद व्हाट इज नोन अबाउट द टॉपिक, यानी ये इंट्रोडक्शन के लिखने की डिफरेंट पैराग्राफ है। फर्स्ट में आपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाना है, सेकंड में व्हाट इज नोन अबाउट द टॉपिक, अप टू डेट स्टडीज, साइट ब्रॉडली वर्ल्ड वाइड कि अब तक क्या कुछ हो चुका है, और what is not known, clearly description of problem, use keywords like however। यानी आपने जब इंट्रोडक्शन सेक्शन लिखना है तो ऐसे लिखना है कि इंट्रोड्यूस द टॉपिक, यानी जो एम है वो जरा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में होगा। ये साइड पे आपको जो ट्रायंगल नजर आ रहा है कि ऊपर जरा आपने पैराग्राफ बड़ा लिखना है, पहले दो व्हाट इज नोन अबाउट द टॉपिक एंड व्हाट इज नॉट नोन। नॉट नोन आपका जस्ट वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा जो आपने क्वेश्चन रेज किया होगा विद इन योर इंट्रोडक्शन, और इसको आप आगे एड्रेस करेंगे
using your methodology and validate through your results. ठीक है, तो आपने जब भी इंट्रोडक्शन लिखना हो तो आपने जस्ट उसको टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाना है और उसमें अभी तक जो नोन है, यानी आपके प्रॉब्लम के हिसाब से जो चीजें जो सोल्यूशन आ चुकी हैं उन सोल्यूशन को आपने बताना है, एंड व्हाट इज नॉट नोन, और जो नहीं अभी तक पता है जिसको आपने एड्रेस करना है, जिसको आप कर रहे हैं अपने मेथोडोलॉजी के थ्रू, वो आपने बताना है. स्पेसिफिक एम्स. इंट्रोडक्शन. Your aim should directly address the problem. For example, ये एक problem है. However, the effectiveness of titanium dioxide surface modification on reducing the microbial contamination of wastewater treatment. अब इसमें however से वो चीज स्टार्ट हो रही है कि effectiveness of titanium dioxide surface modification is your variable. Outcomes क्या है? Reducing the microbial contamination. और सैंपल क्या है जिस पे आप काम कर रहे हैं वो क्या है? वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है. यानी आपका स्टडी एम क्या होगा कि ये आपने प्रॉब्लम ऊपर डिस्कस कर दिया, यानी ये जो लिमिटेशन है एग्जिस्टिंग लिटरेचर की, योर स्टडी एम इज एंड दिस स्टडी वी एवेल्युएटेड एफ टाइटनम, यानी उसी को आप दोबारा अपना एम बना रहे हैं. मॉडिफिकेशन को हम इफेक्टिवली रिड्यूस कर लें तो ऊपर फर्स्ट वन इज द इफेक्टिवनेस ऑफ टाइटनम डाइऑक्साइड सरफेस मॉडिफिकेशन. स्टडी एम में भी आपका जो वेरिएबल है वो ये रिड्यूसिंग द माइक्रोबियल कंटेमिनेशन. तो आप क्या कर रहे हैं? रिड्यूसिंग द बैक्टीरियल एंड फंगल कंटेमिनेशन मेम्ब्रेन आफ्टर द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. तो आपने एम अकॉर्डिंगली सेट करना है जो आपका प्रॉब्लम होगा. अब सेकंड पार्ट है योर मेथड्स. व्हाट डिड यू डू? रिसर्चर्स इन योर फील्ड reproduce your findings, build on your research. Peer reviewers evaluate your study design, validate your results. What you used in the study, in sample or participants materials. आपने अब मेथड्स में, यानी आपका जो मेथड है, मोस्टली जो अर्ली करियर रिसर्चर या स्टूडेंट है वो इसमें गलती करते हैं कि मेथड में किसी और पेपर का मेथड बताने लग जाते हैं. अब आपने ऊपर एक इंट्रोडक्शन में एक क्वेश्चन रेज किया है कि ये मसला है, उसको आपने आगे सॉल्व करना है. तो इसमें आपने अपनी मेथोडोलॉजी को डिस्कस करना है कि आपने क्या चीज स्टडी में कौन से सैंपल यूज किए हैं, कौन सी मेथोडोलॉजी टेक्निक्स यूज किए हैं, डिस्कस स्पेसिफिक कंडीशन एंड कंट्रोल्स, हाउ यू एनालाइज योर डेटा, कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए हैं, क्या आपने टेस्ट किए हैं, स्टैटिस्टिकल टेस्ट है या कुछ और टेस्ट है. हर एक्सपेरिमेंट के अपने टेस्ट होते हैं. ठीक है, आपने कौन से सैंपल यूज किए हैं, क्या टेक्निक आपने यूज की है, कौन से मेथड्स सॉफ्टवेयर आपने यूज किए हैं और कौन से टेस्ट आपने यूज किए हैं. आपने डेटा 3 मेन पोर्शंस होंगे आपके मेथड्स पार्ट. गाइड योर रिसर्चर थ्रू योर फाइंडिंग्स. अब आपके फाइंडिंग्स जो है उसकी प्रेजेंटेशन ऐसी होगी जिस तरह लास्ट उसी एग्जांपल को लेके चलें कि इनिशियल ऑब्जर्वेशन और फिर उसकी एप्लीकेशन. ठीक है, ये उसकी नीचे एग्जांपल है. पहले जो 3 पॉइंट्स है कि आपने उसको लॉजिकली ऐसे ही जो इनिशियल है उसको आपने कैसे ऑब्जर्व किया, फिर उसकी आगे कैरेक्टराइजेशन कैसे की, एंड देन द एप्लीकेशन. और जो इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट रिजल्ट्स जब आप प्रेजेंट करते हैं तो रिजल्ट्स में हमेशा एक चीज कॉमन स्टैंडर्ड यही चलती आ रही है तकरीबन कि आपने फिगर की कैप्शंस हमेशा नीचे डालनी है और जो टेबल के कैप्शंस हैं वो ऊपर देने हैं. ठीक है, और जो कैप्शंस है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो उस टेबल या फिगर को कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर रहा हो कि आप क्या कहना चाह रहे हैं. यानी क्लियर सब हेडिंग, इंट्रोड्यूस द एक्सपेरिमेंट, डिस्कस, ऑब्टेन डेटा, समराइज. फिर आपने उस हर एक फिगर को डिस्कस भी करना है और उसकी जो की फाइंडिंग्स हैं उनको समराइज भी करना है. ठीक है, फिगर 1 शोज डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी आपने उस एक्सपेरिमेंट को आपने अपने हमेशा जो मैंने मोस्टली जो अर्ली करियर रिसर्चर ये देखे हैं कि वो फिगर मेंशन कर देते हैं, टेबल मेंशन कर देते हैं, लेकिन उसको अपने टेक्स्ट में साइड नहीं करते हैं. जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है फिगर 1 शोज डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सपेरिमेंट, कि आप फिगर 1 में क्या बताना चाह रहे हैं, तो आप पहले उसको अपने टेक्स्ट के अंदर अपने फिगर और जो अपने टेबल्स हैं उनको साइड करके उनको आप एक्सप्लेन करें कि आप क्या चीज बताना चाह रहे हैं. इसी तरह फिगर 2, introduce the experiment, discuss the obtained data, summarize the key findings. जो third part है discussion how your study contributes to the field.
Summarize what did you find, the fourth part of logical manuscript, how your study contributes to the field. Summarize what you did. Begin with the research problem. Briefly describe study design. Summarize key finding. Discussion बड़ी important है. जब भी आप किसी टॉपिक को कोई क्वेश्चन आपने रेज किया है तो उसको उससे आपने स्टार्ट करना है डिस्कशन की. प्रॉब्लम क्या था? ब्रीफली डिस्क्राइब द स्टडी डिजाइन. आपका स्टडी डिजाइन क्या था? समराइजिंग की फाइंडिंग, जो आपके रिजल्ट्स हैं उसको समराइज करें. इंटरप्रेट योर फाइंडिंग्स, similarities and differences, unexpected and negative results, limitations. अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि मोस्टली मैंने रिसर्चर देखे हैं कि जो नेगेटिव या जो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है उसको शो नहीं करते हैं. हालांकि जो नेगेटिव या अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो है उसको आपने शो करना है. जो लिमिटेशंस आ रही है उसको आपने शो करना है. जो आपके पेपर की लिमिटेशंस अगर आप शो नहीं करेंगे तो वो फील्ड एडवांस कैसे होगी, उसमें मजीद चेंजेस कैसे आएंगे. मतलब कोई और उस आपके लिमिटेशंस को लेके दूसरा कोई नया मॉडल, नया मेथड कैसे डिजाइन करेगा. जब तक आप अपनी लिमिटेशंस, अपने नेगेटिव रिजल्ट्स शो नहीं करेंगे तो ये एक गुड गेस्चर होता है, आपने शो करने हैं. व्हाई इंपॉर्टेंट टू द फील्ड, मेन कंक्लूजन और उसकी इम्प्लीकेशंस. अब जो मेन लॉजिकल लिंकिंग ऑफ योर आइडियाज, जो पहले 4 क्वेश्चंस मैंने शुरू में दिए थे, जो रीडर्स देखते हैं आपके पेपर में, व्हाई दिस नीड टू बी डन, यानी ये स्टडी, ये रिसर्च पेपर, ये मेथोडोलॉजी, ये टेक्निक्स आप क्यों लगा रहे हैं. इंट्रोड्यूस द टॉपिक, करंटली पब्लिश्ड स्टडीज, प्रॉब्लम इन द फील्ड, ऑब्जेक्टिव्स. ये पहले जो 4 पार्ट्स हैं ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. सेकेंड वन इज व्हाट यू डिड इज योर मेथोडोलॉजी. ये आपके सेकंड क्वेश्चन का जो है वो आंसर हो जाएगा. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट यू फाउंड विल बी योर रिजल्ट्स एंड फिगर्स. ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. एंड हाउ योर स्टडी विल एडवांस द फील्ड इज द समरी ऑफ योर फाइंडिंग्स, interpretation of the findings and implications of the field. The last 3 parts will answer this question. Logically link your ideas throughout your manuscript. ऐसा नहीं आपके पूरे मैन्युस्क्रिप्ट में, जब मैन्युस्क्रिप्ट और पेपर में फर्क ये है कि मैन्युस्क्रिप्ट हम उसको बोलते हैं जब पब्लिश ना हो. जो पब्लिश हो जाता है वो आर्टिकल या पेपर हम उसको कहते हैं. जब पब्लिशिंग फेज में होता है, आप किसी जर्नल में सबमिट कर लेते हैं तो वो मैन्युस्क्रिप्ट कहलाता है. तो मैन्युस्क्रिप्ट जब भी आप लिखते हैं उसमें आपने थ्रू आउट चीजों को लिंक करना है. आपका हर सेंटेंस अगले सेंटेंस के साथ लिंक होना चाहिए. ऐसा ना हो कि आपने स्टैंड अलोन सेंटेंसेस लिखे हो, एक सेंटेंस कुछ का मतलब कुछ और निकल रहा होता है और उससे अगला जो सेंटेंस है उसका मतलब कुछ और निकल रहा होता है. आपने एक सीक्वेंस में लेके जाना है और सारे जो आइडियाज है वो थ्रू आउट योर मैन्युस्क्रिप्ट उसको आपने लिंक करना है. जैसे आपके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो लिंक होने चाहिए प्रॉब्लम इन द फील्ड, यानी जो आपने प्रॉब्लम डिस्कस की है तो आपके एम्स अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम होने चाहिए. जब आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, आप अपने टॉपिक को, अपने टाइटल को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उसके बाद उस फील्ड में आप प्रॉब्लम बताएंगे तो आपके ऑब्जेक्टिव्स उस फील्ड को, उस फील्ड में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको बेस बना के ही होने चाहिए. यानी योर एम्स, योर ऑब्जेक्टिव्स शुड बी बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम इन दैट फील्ड. ठीक है, ये आपस में लिंक होने चाहिए. देन योर रिजल्ट, आपके रिजल्ट्स और फिगर्स जो है वो जो आपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया है शुरू में, जो आपके एम्स है उसको टारगेट करना चाहिए कि अकॉर्डिंगली आपके रिजल्ट्स और फिगर आए जो आपके एम्स हैं. और इसी तरह जो एप्लीकेशंस या जो मेन फाइंडिंग्स ऑफ योर मेथड है वो प्रॉब्लम इन द फील्ड, जो आपने शुरू में क्वेश्चन रेज किया है उसका आंसर मिलना चाहिए कि आपने उसको एड्रेस कर लिया है. तो किसी भी मैन्युस्क्रिप्ट को लॉजिकली आपने ऐसे लिंक करना है थ्रू आउट. और किसी भी मैन्युस्क्रिप्ट का जो फर्स्ट, वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो वो आपका एब्स्ट्रैक्ट होता है. एब्स्ट्रैक्ट को आपने लिखना कैसे है, इस पे बड़ी खास तवज्जो देनी है आपने. एम्स, उसमें इंपॉर्टेंस ऑफ योर टॉपिक बता रहे होते हैं, रिजल्ट्स आपने बताने, सिग्निफिकेंस ऑफ योर स्टडी एंड कंक्लूजन, रेलेवेंस ऑफ योर स्टडी. ठीक है, आपने यू शुड बी वेरी क्लियर. यानी जो आपने लिखना है आपने बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में,
प्लेन इंग्लिश में जो कुछ टेक्निकल टर्म्स है वो तो डेफिनेटली आएंगी, लेकिन आपने ऐसे लिखना है कि आप अपने लिए नहीं लिख रहे हैं, आप अगले को समझा रहे हैं, तो आपने रीडर्स के पर्सपेक्टिव से इसको लिखना है। गुड फर्स्ट इंप्रेशन, व्हाट डू यू रीडर्स वांट टू नो, ठीक है, वही 4 क्वेश्चंस, ठीक है। तो यही 4 क्वेश्चंस आपको लेके, यानी आपकी लॉजिकल लिंकिंग मैन्युस्क्रिप्ट की ऐसी होगी कि हर एक पोर्शन से वो रिफ्लेक्शन नजर आए, जिस तरह एब्स्ट्रैक्ट और इंट्रोडक्शन से ये रिफ्लेक्शन नजर आए कि ये टॉपिक क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है और आपके एम्स क्या है। एब्स्ट्रैक्ट में चूंकि वो पूरे मैन्युस्क्रिप्ट का होता है, तो उसमें टॉपिक और प्रॉब्लम क्या है ये उस मैन्युस्क्रिप्ट से रिफ्लेक्शन आनी चाहिए कि किसी भी रीडर को पता लगे कि ये इस फील्ड की जो प्रॉब्लम है वो कौन सी प्रॉब्लम इस पेपर में एड्रेस हो रही है, और आपकी एम्स और मेथोडोलॉजी क्या है, आपके रिजल्ट्स क्या है, और आपकी कंक्लूजन एंड फ्यूचर डायरेक्शंस और इम्प्लीकेशंस क्या है। ये एक सैंपल है गुड फर्स्ट इंप्रेशंस, ठीक है। यानी आपने उसको लिखना क्या है, एब्स्ट्रैक्ट जो है वो लिखते कैसे हैं। फर्स्ट वन विल बी द बैकग्राउंड, numerous systematic treatment option exist, ठीक है। ये जो एग्जिस्टिंग मेथड्स हैं आपने उसका बैकग्राउंड लेके चल रहे हैं कि बहुत सारे मेथड, इस लाजमी बात है यू आर नॉट द फर्स्ट वन, आप पहले इंसान नहीं है जो इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं, आपसे पहले बहुत सारे लोग कर चुके होते हैं। तो आपने numerous या lot of research is done, या this is very hot topic from several decades, from last decade, from last few years, इस तरह के कुछ सेंटेंस बना के कि आप बैकग्राउंड से पता चले कि आपने लिटरेचर स्टडी की हुई है। उसके बाद however there clear हम क्या है वो आपने however से बड़ा हाईलाइट कर देना है। उसके बाद मेथड्स और एम, यानी पहले बैकग्राउंड, और आपने कोशिश ये करना है कि जितना आप प्रिसाइज और कंसाइज लिख सकते हैं उससे आपकी एक्सपर्टीज का पता चलता है। और जर्नल्स, मोस्ट जर्नल्स की बड़ी लिमिटेशंस होती है कि वो 8 पेजेस और नंबर ऑफ फिगर्स, नंबर ऑफ वर्ड्स पे भी वो रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। तो आपने ज्यादा लेंथी सेंटेंसेस नहीं लिखने, शॉर्ट और बड़े कंसाइज और प्रिसाइज सेंटेंसेस लिखने हैं, ठीक है। जिस तरह 2 लाइंस या 3 लाइंस में, 2 लाइंस में आपने बैकग्राउंड को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर दिया। नाउ योर मेथड्स एंड एम्स वी परफॉर्म्ड, यानी आपने स्टार्ट करना है डेफिनेटली, आप और आपके साथ कोऑथर, आपका सुपरवाइजर तो होगा ही होगा इन पाकिस्तान, ठीक है। तो मेथड्स एंड एम्स वी परफॉर्म्ड, ठीक है। आपने क्या किया, टू एवेल्युएट द ट्रीटमेंट ऑफ, यानी जहां से आप प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं अकॉर्डिंगली आप सारी चीजों को लिंक कर रहे हैं। बैकग्राउंड आपने दिया है, एंड नाउ मेथड्स एंड एम्स वी परफॉर्म टू एवेल्युएट, यानी जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं उसको आप वैलिडेट, एवेल्युएट करने जा रहे हैं। In this study we used methodology to evaluate, ठीक है। In this study we evaluated using this methodology, ऐसे आपने उसका स्टार्ट लेना है, या we performed, ठीक है, in this study, in this paper। उसके बाद रिजल्ट्स वी फाउंड, ठीक है। तो आपने अपने रिजल्ट्स डिस्कस करने, एंड कंक्लूजन आपने एट द एंड, यानी एक गुड जो मैन्युस्क्रिप्ट होगा उसमें ये 4 पोर्शन मस्ट होने चाहिए। आपका बैकग्राउंड ऑफ योर स्टडी, योर मेथोडोलॉजी इन अ वेरी प्रिसाइज एंड कंसाइज वे, रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन। अब पहला बैकग्राउंड है, उससे आपका वही जो रीडर्स आंसर ढूंढेगा कि व्हाई दिस स्टडी नीडेड टू बी डन, उसका आंसर मिल जाएगा। देन सेकंड जो आपकी मेथोडोलॉजी है, व्हाट यू डिड, उसका आंसर मिल जाएगा। एंड थर्ड, व्हाट यू फाउंड, योर रिजल्ट्स। एंड द लास्ट वन इज हाउ एडवांसेस इन द फील्ड, योर रिजल्ट्स, योर कंक्लूजन एंड फ्यूचर डायरेक्शंस। So this is the first session of logically organized manuscript. अब manuscript आपका रेडी हो गया, आप क्वेश्चन लिख लें, then we will discuss where to submit। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमने अब इसको सबमिट कहाँ पे करना है, यानी एफिशिएंट पब्लिकेशन स्ट्रेटेजी। आपके पास बहुत सारे एकेडमिक पब्लिशर ऑर्गेनाइजर हैं, बहुत सारों के आप लोगों ने नाम सुने होंगे, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, हिंदावी, एमडीपीआई, स्पेंगर, एल्सवेयर, IEEE, वैले, ठीक है, प्लस ये डिफरेंट काइंड ऑफ एकेडमिक पब्लिशर हैं जो जिनके बहुत सारे जर्नल्स हैं एंड नंबर ऑफ थाउजेंड्स जो आपके पेपर को पब्लिश करते हैं, ठीक है। ये पब्लिशर है।
पब्लिशर के नेम है। अच्छा, चूज द अप्रोप्रिएट जर्नल। आपने जर्नल की सिलेक्शन करने कैसे हैं? वैसे ड्यूरिंग माय पीएचडी जब मैं देखता था तो उसमें मैं सबसे पहले दो चीजें देखता था। एक तो जर्नल की आपने देखना है कि ऑथेंटिक है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर मैं उसमें ऑथेंटिक जर्नल है, कोई भी ऐसा जर्नल मैंने नहीं देखा जो आपको 3 से 4 महीने से पहले पेपर पब्लिश करके दे। नॉर्मल टाइम 3 to 4 months, जितने भी फास्ट जर्नल्स हैं इतना लेते हैं, फ्रॉम योर सबमिशन टिल रिवीजन टिल पब्लिकेशन। जितना भी ये टाइम है तकरीबन 3 to 4 months हर एक जर्नल ले लेता है। दूसरी चीज जो मैं देखता था उसमें टाइम टू पब्लिकेशन, कि टाइम कितना लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि साल लगता है। और दूसरा, कुछ जर्नल ऐसे हैं कि वो रिव्यू जल्दी कर देते हैं, एक्सेप्ट कर देते हैं, लेकिन पब्लिश साल बाद करते हैं। तो ये सारी चीजें मैं उसमें देखता था। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है कास्ट, कि कोई उसकी आर्टिकल पब्लिकेशन चार्जेस तो नहीं है या सबमिशन चार्जेस तो नहीं है। तो ये 3 चीजें देखने के बाद फिर अब मैं उसका स्कोप देखता था कि उसका स्कोप जो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है या जो मैंने पेपर जिस फील्ड में लिखा हुआ है उससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर पब्लिकेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ पब्लिकेशंस, कि ये कितने इश्यूज पर ईयर निकालता है ये जर्नल। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जितने ज्यादा इश्यूज होंगे उतने ज्यादा चांस आपके पेपर के एक्सेप्टेंस की भी होते हैं और जल्दी पीयर रिव्यू के भी होते हैं। और इम्पैक्ट फैक्टर क्या है उसका, और उसके बाद ऑडियंस के मेनली ये जर्नल रिलेटेड किससे हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी है या जस्ट बायोमेडिकल से रिलेटेड है या जस्ट सिंपल इमेजेस से रिलेटेड है या किसी एंटीना की फील्ड से है या किसी सिग्नल प्रोसेसिंग की फील्ड से, यानी कौन से लोग मोस्टली इस जर्नल को देखते हैं। ऑडियंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी नीड टू मीट अ टाइट डेडलाइन। यानी आपने अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है अकॉर्डिंगली आपने जर्नल देखना है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, ये लेफ्ट है और राइट है, ठीक है। ओपन एक्सेस मींस कि आपका जो पेपर है वो ओपनली अवेलेबल होता है फॉर द रीडर्स विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन और कास्ट। यानी कोई भी उसको डाउनलोड कर सकता है, फुली उसको रीड कर सकता है, ठीक है। कुछ क्लोज एक्सेस जर्नल्स होते हैं जो कि एक एम्ब्रिको पीरियड में उसको रखते हैं 1 ईयर के लिए, जिसकी आप पेमेंट नहीं करते। तो वो आपका रिस्ट्रिक्शन में होता है आपका पेपर जर्नल के पास, आप 1 साल के बाद वो फुली अवेलेबल होता है। तो ओपन एक्सेस का फायदा ये होता है कि आपका पेपर रीडर्स के लिए अवेलेबल है, कोई भी उसको डाउनलोड कर सकता है। जब डाउनलोड होगा तो आपके पेपर्स की वर्क बढ़ेगी, लोग उसको स्टडी करेंगे, उसको पढ़ेंगे और उसको साइट करेंगे। जितनी साइटेशंस बढ़ेगी इसका मतलब है कि आपका पेपर वर्थफुल है। अगर आपने कोई पब्लिकेशन की है और उसकी कोई साइटेशन ही नहीं है तो मींस कि वो जस्ट वेस्टेज है, कोई उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि मोस्टली विद इन माय पीएचडी अक्सर मैं भी अपने सुपरवाइजर से यही क्वेश्चन करता था कि मुझे जर्नल बताएं। तो जितने भी यहाँ पे आप जो पीएचडी स्टूडेंट स्पेशली सुन रहे हैं तो वो लिस्ट ऑफ जर्नल फाइंडर्स टूल बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा आसान सा है। आपने खुद से जर्नल सेलेक्ट करके अपने सुपरवाइजर के पास जाना है, ठीक है। एडन्स जर्नल सेलेक्टर, जर्नल स्प्रिंगर का अपना एक जर्नल सेलेक्टर है, एल्सवेयर का अपना जर्नल सेलेक्टर है, वेले का अपना जर्नल सेलेक्टर है, लेटपब ये अलग है, IEEE का अपना पब्लिकेशन रिकमेंडर है, और जेने ये 7 आपके पास जर्नल फाइंडर टूल्स हैं। जब भी मोस्टली अप्रोच ये होती है कि आप किसी जर्नल को टारगेट करके ही पेपर लिखते हैं, या दूसरी अप्रोच ये है कि आपने पेपर लिख लिया, आप जर्नल ढूंढ रहे हैं। तो उसका तरीका ये है कि या तो एन टूल्स को यूज करें, ठीक है, जो डिफरेंट हर एक जो डेटाबेसेस हैं, पब्लिशर्स हैं, उन्होंने अपना एक टूल जनरेट किया हुआ है कि आपने उन पब्लिशर में से, क्योंकि एक पब्लिशर बहुत सारे जर्नल को पब्लिश करता है, तो आपके रिलेवेंट जर्नल कौन सा है, तो वो ये टूल्स हैं। या दूसरा तरीका उसका ये कि आप अपने रेफरेंसेस जो आपने दिए हैं, 20 25 30 रेफरेंसेस आपने दिए होंगे, तो उसमें से आप कोई जर्नल देखें जो आपकी, उससे डेफिनेटली आपने रेफर किया है, आपने साइट किया हुआ है, तो वो 100% आपके फील्ड से मैच कर रहे हैं। तो वहां से आप कोई जर्नल, कोई ऑथेंटिक जर्नल उठा के आप उसको देख सकते हैं।
अच्छा, इसको यूज कैसे करते हैं ये मैं एट द एंड बता दूंगा कि आपने कोई भी किसी एक पे क्लिक करके, बड़ा सिंपल है, इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है कि आपने इन टूल्स को कैसे यूज करना है। जस्ट आपने ये लिंक ओपन करना है, किसी में वो जस्ट टाइटल ऑफ योर पेपर मांगते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, आपने वो कॉपी पेस्ट कर देना है और आपने रन कर देना है। उसके बाद वो खुद ही 7-8 जर्नल्स जो रेलेवेंट है वो आपको सजेस्ट कर देता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सेकंड वन, फ्लो चार्ट फॉर जर्नल सिलेक्शन, क्या आपने अपने रेफरेंसेस चेक कर लेने। और जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जर्नल ऑथेंटिक है कि नहीं, तो उसके लिए आपने मास्टर जर्नल लिस्ट में जाना है और फिर उसके बाद उसका इम्पैक्ट फैक्टर चेक करना है। ठीक है, तो ये मास्टर जर्नल लिस्ट mjlclarative.com, ठीक है, ये मोस्टली सारों को पता भी होगा, मास्टर जर्नल लिस्ट। यहाँ पे जस्ट जो आपके पास सर्च जर्नल्स का जो ऑप्शन नजर आ रहा है, तो इसमें सर्च जर्नल ISSN और टाइटल वर्ड, यानी यहाँ पे आप जर्नल का टाइटल देंगे या उसका ISSN नंबर देंगे या कोई जो उसकी एब्रिवेटेड फॉर्म होगी टाइटल वर्ड, वो आप दे सकते हैं और इसके जरिए। अच्छा, यहाँ पे भी मैच मैन्युस्क्रिप्ट, इस claritative.com में भी आप जर्नल की सिलेक्शन यहाँ से भी कर सकते हैं। आप मैच मैन्युस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो आपने पेपर लिखा है उसका एक टाइटल होगा। अच्छा, टाइटल के बारे में एक चीज बताना मैं भूल गया हूँ कि टाइटल भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मैन्युस्क्रिप्ट का। टाइटल को आपने कोशिश करना है कि आपका 2 लाइनों से ज्यादा टाइटल ना हो, यानी बहुत लेंथी टाइटल ना हो, उसमें कोई ज्यादा एब्रिवेटेड, बल्कि एब्रिवेशन कोई ना ही हो तो अच्छा है, या कोई फार्मूला आपने उसमें नहीं डालना। ठीक है, ये मोस्टली जो नेचर, जो हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स है वो इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं कि आपका टाइटल बहुत ज्यादा लेंथी ना हो और उसमें ज्यादा एब्रिवेटेड या कोई फार्मूला आपने किसी टाइटल में यूज नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ से आप मैन्युस्क्रिप्ट को मैच कर सकते हैं, टाइटल आप देंगे, एब्स्ट्रैक्ट देंगे, तो आपके पास खुद ही जर्नल की एक लिस्ट आ जाएगी। अच्छा, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसी MJL जो मास्टर जर्नल लिस्ट है, इस लेफ्ट साइड पे अगर आपको ये जो रेड मैंने क्लोज किया, एनक्लोज किया हुआ है, इसमें आपके पास मजीद आप फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। आप यहाँ से एक्सेस, ओपन एक्सेस आपको चाहिए, आपकी कैटेगरी कौन सी है, कंट्री कौन सा है, लैंग्वेज कौन सी चाहिए, फ्रीक्वेंसी कौन सी चाहिए, वेब ऑफ साइंसेस की कवरेज कौन सी चाहिए। तो यहाँ से आप इसको फिल्टर करके मजीद अपनी जो उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं, जो अपनी सर्च स्ट्रेंग है उसको मजीद आप रिफाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा जिस अभी HEC ने, हायर एजुकेशन कमीशन ने एक जर्नल सिस्टम लॉन्च किया है, jrs.hec.gov.pk, तो उसका ये इंटरफेस मैं स्क्रीनशॉट ली हुई आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे आप 2 तरीकों से सर्च कर सकते हैं, एक जर्नल नेम से और दूसरी जो टैब आपको नजर आ रही है फाइंड जर्नल में ISSN के थ्रू आप उसको सर्च कर सकते हैं, यानी आप जर्नल का नाम दो। मोस्टली आई वुड लाइक टू प्रेफर टू सर्च यूजिंग ISSN, क्योंकि ISSN यूनिक होता है और जो जर्नल के नेम वो कभी मैच भी हो सकते हैं या गलत भी आप लिख सकते हैं, तो वो मिलते नहीं है। कभी कभार आपको ये लगता है कि वो जर्नल ऑथेंटिक नहीं है लेकिन आपने नाम ही गलत लिखा होता है, जिस तरह एंड कोई वो जस्ट साइन यूज करते हैं, कुछ AND लिखते हैं, तो इसमें थोड़ी कंफ्यूजन आ जाती है। तो आप बेटर वे ये है कि आप ISSN से उसको सर्च करके देख लें, पहले ISSN देख लें कि उस जर्नल का ISSN है क्या, उसके थ्रू आप सर्च कर सकते हैं। तो इसमें भी देखना जरूरी है कि वो इसमें भी लिस्टेड है कि नहीं, क्योंकि इन फ्यूचर जो आपकी जितनी फैकल्टी की जो प्रमोशंस होगी वो ऑन द बेस्ड ऑफ HRS होगी, तो इस वजह से आप जो भी जर्नल सेलेक्ट करें कोशिश करें कि आप इसमें भी देख लिया करें कि वो जर्नल इसमें एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। अब जर्नल ऑथेंटिक है या नहीं, तो पहले तो बात तो ये है कि उसके लिए रिप्यूटेबल पब्लिशर होना चाहिए, जो स्प्रेंगर, नेचर, एल्सवेयर, प्लस, MDPI, हिंदावी, IEEE, जो मोस्ट ट्रस्टवर्थी पब्लिशर है, अगर उनका जर्नल है तो किसी हद तक आप कह सकते हैं कि वो ठीक होगा। एडिटोरियल बोर्ड आपने उसका देख लेना है कि इंटरनेशनल एंड फेमिलियर हो, और उसकी इंडेक्सिंग देखनी है कि कौन कौन सी जो कॉमन डेटाबेसेस है, जिस तरह दवाज जो डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल्स, और इस तरह पबमेड और बहुत सारी डेटाबेसेस हैं कि उसमें वो लिस्टेड है कि नहीं है।
डेफिनेटली जब आप किसी फील्ड में स्टडी कर रहे होते हैं तो आप बहुत सारे अथर्स के नेम से आप फेमिलियर्स हो जाते हैं, तो आपने उनके पेपर्स देखने हैं उस जर्नल्स के कि कोई अथर्स ऐसे हैं जिसको आप जानते हैं या नहीं, और उसकी फीस मोस्टली अभी तक जितना मेरा एक्सपीरियंस है कि कभी भी कोई भी ऐसा जर्नल नहीं है जो आपको पब्लिकेशन से पहले पैसे मांग लें। यानी सबमिशन के दौरान कि आप जो पेपर सबमिट कर रहे हो और वो एक रिव्यू के लिए जाएगा, तो उस दौरान कोई भी जर्नल आपसे पैसों का नहीं कहता। जब पेपर एक्सेप्ट हो जाए तो उसकी कुछ एपीसी जिसको बोलते हैं, आर्टिकल पब्लिशिंग चार्जेस, वो आफ्टर योर एक्सेप्टेंस, जब आपका पेपर एक्सेप्ट हो जाता है, आपको ईमेल आ जाती है, एक्सेप्टेंस आ जाती है, उसके बाद वो एक इनवॉइस जनरेट होती है फ्रॉम योर जर्नल पब्लिशर कि आप क्योंकि उसमें वो रिव्यूइंग प्लस पब्लिकेशन सारी कास्ट उन्होंने कवर करनी होती है, हमेशा पोस्ट ही होती है। प्री फी मैंने किसी जर्नल की आज तक नहीं देखी, अगर है तो वो दैट वुड बी सम काइंड ऑफ प्रेडेटरी जर्नल। और थिंक चेक एंड सबमिट, ये थैंक्स चेक सबमिट नेचर वालों ने इनके साथ कोऑर्डिनेशन करके ये एक लिस्ट बनाई है कि आप किसी ऐसे जर्नल में ना जाए जो ऑथेंटिक ना हो। आपने थिंक, उसके बाद चेक में आपने क्या करना है कि यूर रिसर्च टू आर ट्रस्टेबल, इज इट द राइट जर्नल फॉर योर वर्क, उससे सेलेक्ट कर लिया है कि ये ट्रस्टेड है और राइट है। उसके बाद आपने जस्ट चेक करना है द चेक लिस्ट, अगर ये सारी चेक लिस्ट का आंसर यस है, उसमें क्या डू योर कोलीग्स नो द जर्नल, क्या आपके कोलीग को किसी को पता है इस जर्नल का नाम, कोई जानता है, कैन यू इजीली आइडेंटिफाई कॉन्टेक्ट द पब्लिशर, इज द जर्नल क्लियर अबाउट द टाइप ऑफ पीयर रिव्यू। यानी ये कुछ चेक लिस्ट है जो आपने देखनी है। डू यू रिकॉग्नाइज द एडिटोरियल बोर्ड, द पब्लिशर मेंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड industry, if a publisher open access, does the publisher belong to open access scholarly publishing association OSPA, is the publisher member of another trade association। यानी ये कुछ common questions है, only submit to the journal if you can answer yes to all these questions। appropriate जर्नल की सिलेक्शन हो गई है, लॉजिकल ऑर्गेनाइज्ड मैन्युस्क्रिप्ट हो गया, रेडी टू सबमिट। यानी आपने पेपर लिख लिया है, जर्नल सेलेक्ट कर ली। मेरे ख्याल में मैं ये जर्नल सिलेक्शन थोड़ा सा वापस आके ये टूल्स कैसे यूज करते हैं इनमें से एक दो को मैं करवा के फिर नेक्स्ट पे हम चलते हैं। मोस्ट कॉमन, मैं स्क्रीन रीशेयर करता हूं ताकि आई होप सो कि स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही होगी। तो इसमें जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि mjlclarative.com, वही मैंने ओपन कर दिया है। ठीक है, आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन जो मैंने आपको शो करवाई थी कि इसमें आपके पास यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जर्नल ISSN और टाइटल वर्ड, ठीक है, और उसके बाद मैच योर मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। इसके अलावा पब्लोन्स, वेब ऑफ साइंस, जनरल साइटेशन, JCR जिसको हम बोलते हैं, रिपोर्ट्स यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी जर्नल यहाँ पे हो सकता है, मैंने बहुत सारे देखे भी हो, ठीक है, कोई भी मैं जर्नल सेलेक्ट करता हूँ, सोशल साइंस कंप्यूटर रिव्यू, ठीक है, जस्ट मैंने उसका नाम दिया है, यहाँ से मैं इसको सर्च करूंगा, अब इसमें एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अच्छा, एक तो यहाँ से आपको पब्लिशर का पता लग रहा है कि ये सही पब्लिकेशंस इनका है, और ISSN नंबर भी आपको यहाँ से पता लग रहा है, और इसकी जो कोर कलेक्शन है, वेब ऑफ साइंस कोर कलेक्शन, वो क्या SCIE है या नहीं है, ठीक है, SCIE साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड। तो SCIE जितने भी जर्नल्स हैं ये इम्पैक्ट फैक्टर वाले होते हैं, और ये सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स भी है, SSCI भी है, ठीक है। और फिर उसके बाद इसकी जो सेशनल इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। मजीद अगर आपने देखना है कि ये जर्नल है क्या, मजीद आपने इसको इन्वेस्टिगेट करना है, तो आपने यहाँ से इस पे क्लिक करना है व्यू प्रोफाइल,
मैं जर्नल का नाम कॉपी कर लूँ या SSN कॉपी कर लूँ। चलो यहाँ से मैंने जर्नल नेम से सर्च करके दिखा दिया। HGRS में SSN से मैंने यहाँ से SSN मैंने कॉपी कर लिया। व्यू प्रोफाइल, आप व्यू प्रोफाइल में जाएंगे। यहाँ से आप इसमें अपने जीमेल, फेसबुक, लिंक्डइन और एक आईडी किसी से भी आप, और CID से किसी से भी आप लॉगिन हो सकते हैं मजीद इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ठीक है, अब ये उसकी मजीद डिटेल आ गई अबाउट जर्नल। यहाँ पे जर्नल की वेबसाइट पे आप डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हैं, पब्लिशर वेबसाइट। और फ्रिक्वेंसी बायो मंथली, इसका मीन्स कि हर 2 महीने बाद इसका एक इशू आता है, यानी टोटल इश्यूज इसके 6 होंगे। यहाँ पे फ्रिक्वेंसी बायो मंथली है तो इश्यूज पर ईयर 6, और ये इंग्लिश लैंग्वेज में प्राइमरी जो इसकी कब। अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने जरा हिस्ट्री भी चेक करनी है जर्नल की, ये कब से एग्जिस्ट कर रहा है। 1985, ये बहुत पुराना जर्नल है। ठीक है, यहाँ से ये कोर कलेक्शंस आपने देखनी है कि जो आपके उससे मैच हो रही है या नहीं हो रही। कंप्यूटर साइंस, इंटरडिसिप्लिनरी एप्लीकेशंस, ठीक है, जो जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, जिस तरह कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग या इंटरडिसिप्लिनरी, तो इसका मतलब है कि वो मैच हो रही है अगर आपने इसमें कोई पेपर भेज दिया। ठीक है, उसके बाद जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो यहाँ से आपको पता लग रहा है। ठीक है, 2018 का इम्पैक्ट फैक्टर है, क्योंकि इम्पैक्ट फैक्टर का आप लोगों को पता होगा कि इम्पैक्ट फैक्टर की कैलकुलेशन ऐसी होती है कि 2 साल में जितने आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं लास्ट 2 इयर्स में, फॉर एग्जांपल आपने 19 की देखनी है तो 19 और 20 में जितने उसके उसके लास्ट 18 और 17 में जितने आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं और उनकी जितनी साइटेशंस हुई हैं, उनका रेशो जो है बेसिकली इम्पैक्ट फैक्टर है। ठीक है, तो इसमें कैटेगरीज यहाँ पे भी सारी वो मेंशन है कि इन कैटेगरीज में अगर कोई जर्नल कोई आपका पेपर लाइक कर रहा है तो आप इसमें पब्लिश कर सकते हैं। यहाँ से इम्पैक्ट फैक्टर आप देख सकते हैं। इसके अलावा पेयर रिव्यू इंफॉर्मेशन भी इसमें है। पब्लोन्स बेसिकली ये जितने भी आप रिव्यू करते हैं किसी जर्नल को, तो ये उन जर्नल का रिकॉर्ड रखता है कि आप अपना प्रोफाइल उस पर बना सकते हैं। आप किसी जर्नल का कोई पेपर रिव्यू करेंगे तो आपका रिकॉर्ड वहां पे ऐड होता जाएगा कि आप अभी तक कितने पेपर्स आपने रिव्यू कर लिए। यानी बेसिकली एक प्रोफाइल आप इस पे बना सकते हैं पेपलॉन्स पे, जो आपकी रिसर्च की समरी भी रखता है, सारी स्टैटिस्टिक्स जनरेट कर रहा होता है। यहाँ से आप जनरल साइटेशन JCR रिपोर्ट भी ये 2020 के मुताबिक ये दिखा रहा है, तो आप ये डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी मैं चीज बता रहा था कि जब आप सिंपल इसमें आते हैं सर्च जर्नल में, ठीक है, आपने कोई फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कहता हूँ कि बायोमेडिकल, मुझे बायोमेडिकल से रिलेटेड जर्नल चाहिए। अब ये यहाँ पे मेंशन कर देगा और इसको ये तकरीबन 222 नेक्स्ट पेजेस तक मैं इसको लेके जाऊंगा। तो ये बहुत सारे, हर एक पेज पे इतने सारे जर्नल है, तो इसमें से सॉर्ट आउट करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए फिर मैं यहाँ से फिल्ट्रेशन पे आऊंगा कि मुझे कौन कौन सी चाहिए। इसमें मुझे सिर्फ साइंस साइटेशन एक्सपेंडेड चाहिए। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा तो कुछ वहां से वो कम हो जाएंगी। और इसके अलावा आप करंट कंटेंट्स मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग, कंप्यूटिंग के हो। ठीक है, ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और अदर्स को आप रहने दें, अगर कर सकते हैं उसमें भी आप मजीद, तो आप उसको ओपन एक्सेस, आप मुझे ओपन एक्सेस की चाहिए, लिस्ट एंड डायरेक्टरी ओपन एक्सेस जर्नल्स, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो मजीद जो है वो कैटेगरी आप इसमें इंजीनियरिंग या बायो या आप जिस फील्ड से भी आपका ताल्लुक है तो आप वही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग पेट्रोलियम, मैकेनिकल, मैरीन इंडस्ट्री, ठीक है, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद आप कंट्री रीजन वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी कंट्री का आपको चाहिए। लैंग्वेज को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी आपको कितनी चाहिए, एनुअल या बाई मंथली या मंथली, जो ये डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है, तो वहां से आप उसमें से GCR इंक्लूडेड एंड GCR हो या ना हो, तो इंक्लूडेड हो, ये तो जरूरी है कि अगर आपने पैक फैक्टर वाला है तो उसमें इंक्लूडेड हो। तो अब आप देख लें मेरे पास सिर्फ
इसी क्राइटेरिया को यूज करते हुए कहाँ वो और कहाँ ये, सिर्फ 2 मेरे पास जर्नल आ गए हैं जिनको अब मैं टारगेट करके मजीद इनको इन्वेस्टिगेट कर सकता हूँ, इनका इम्पैक्ट फैक्टर देख सकता हूँ, इनके वेबसाइट पे जाके मजीद इनकी डिटेल देख सकता हूँ। अच्छा, ये तो सिंपल जर्नल सिलेक्शन। अब इसी को LJRS का जो मैं बता रहा था हायर एजुकेशन का, इसमें आपके पास एक तो आप जर्नल नेम से इसको सर्च कर सकते हैं या ISSN से सर्च कर सकते हैं। तो ISSN मैंने उसका कॉपी किया था, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है वही ISSN फाइंड जर्नल। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि वो जर्नल यहाँ पे भी एग्जिस्ट, यहाँ पे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको नजर आ रही है कि इसका ISSN क्या है, ये कौन सी कंट्री जो है इससे पब्लिश हो रहा है, स्कूपस में इंडेक्स्ड है कि नहीं, वेब ऑफ साइंसेज में इंडेक्स्ड है कि नहीं, और कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंसेज इसकी 2 मेन कैटेगरीज है। यहाँ पे इसकी कैटेगरी जो HEC ने दी है वो डब्ल्यू मोस्टली जनरल जो इम्पैक्ट फैक्टर है उसको हम W कैटेगरी में, यानी आपके पास HEC की बेसिकली लोकल कैटेगरीज है X, Y, Z, XW, ठीक है। YZ तो मेरे ख्याल Z सोशल साइंसेस के लिए YZ ये दोनों होते हैं, लेकिन साइंसेस के लिए Y या इससे ऊपर ऊपर की हम कैटेगरी फिलहाल कंसीडर हो रही है, लेकिन इन फ्यूचर सिर्फ W ही कंसीडर होगी जो इम्पैक्ट फैक्टर वाले। तो आपने कोशिश यही करना है कि जो इम्पैक्ट फैक्टर है उन जर्नल्स को आप टारगेट करें, और जो एक्स कैटेगरी वाले जर्नल्स हैं वो सिंपल जो ESCI जो एमर्जिंग साइंस साइटेशन इंडेक्स वाले होते हैं, ESCI जो जर्नल्स होते हैं वो मोस्टली एक्स कैटेगरी में लाई कर रहे होते हैं। तो आपने कोशिश यही करना है कि W कैटेगरी के जर्नल्स को ही टारगेट करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो और टूल्स थे, अच्छा इसमें एक चीज रहेगी मैन्युस्क्रिप्ट मैचिंग, ये मैं आपको दिखा दूं। यहाँ से मैन्युस्क्रिप्ट मैच आपने करना है। ये अब देखिए यहाँ पे जस्ट टाइटल एब्स्ट्रैक्ट, आप यहाँ से टाइटल जो आपने पेपर लिखा है उसका टाइटल लिखेंगे और एब्स्ट्रैक्ट, उसके बाद फाइंड जर्नल, तो आपके पास 7, 8, 10 जर्नल्स आ जाएंगे। इसके अलावा हमने जर्नल सिलेक्टर्स टूल्स डिफरेंट 7, 8 हमने पहले डिस्कस कर लिए थे, तो उसी को अगर मैं यूज करूं, यहाँ से आप ये जर्नल सिलेक्टर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आप जर्नल को सिलेक्ट कर सकते हैं, जर्नल नेम पब्लिशर को, ठीक है। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। रजिस्टर हो के फिर आप मजीद इसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, जिस तरह आप टाइटल या एब्स्ट्रैक्ट के हवाले से आप इसमें मजीद जो है वो सर्चिंग कर सकते हैं। इसी तरह इसका स्प्रेंगर का अपना सजेस्टर है, जनरल सजेस्टर है, एल्सवेयर का अपना है, IEEE का अपना है। तो आप ये सारे यूज करते हैं जिस पब्लिशर में आपने पेपर पब्लिश करना है। देखिए ये स्प्रेंगर का है, ठीक है। तो इसमें मैन्युस्क्रिप्ट टाइटल, उसका टेक्स्ट, और जो एब्स्ट्रैक्ट है उसका टेक्स्ट, और सब्जेक्ट एरिया कौन सा है, सजेस्ट जर्नल। यहाँ पे आप मजीद आप इसको रिफाइन कर सकते हैं अपनी सर्च स्ट्रेंथ को, क्या मिनिमम इम्पैक्ट फैक्टर आपको क्या चाहिए, और मिनिमम एक्सेप्टेंस रेट आपको क्या चाहिए, और मैक्सिमम टाइम टू फर्स्ट डिसीजन आपको क्या चाहिए, और कौन सी डेटाबेसेस में ये इंडेक्स हो। तो ये ऑप्शनल है, मतलब आपको 2-3 जिसकी समझ आ रही है वो आप एंटर कर दें, जिसकी समझ नहीं आ रही उसको आप जाने दें। फिर व्यू ऑल जर्नल्स या ओपन एक्सेस या जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है उन जर्नल्स को आप सजेस्ट जर्नल्स यहाँ से भी आप जा सकते हैं, ठीक है। मैं दोबारा प्रेजेंटेशन वाली स्क्रीन शेयर करता हूँ।
अच्छा, यहाँ पे हम आ गए प्रिपेयर्ड जर्नल सिलेक्ट हो गया, लॉजिकल ऑर्गेनाइज मैन्युस्क्रिप्ट रेडी टू सबमिट। अच्छा, अब सबमिशन में सक्सेसफुल जर्नल सबमिशन, जर्नल एडिटर्स आर वेरी बिजी, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह ये कि मोस्ट एडिटर्स आर नॉट फुल टाइम जर्नल एडिटर्स, वो मोस्टली फुल प्रोफेसर्स होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, और उनके पास इतना एनफ टाइम नहीं होता कि आप कुछ भी लिख के भेज दें तो उसको देखते रहें। You are competing with many other researchers for the journal editor limited time, ठीक है। जब भी आप पेपर सबमिट करते हैं, मैं रिकमेंड करूंगा जो जितने भी अर्ली कैरियर रिसर्चर्स हैं, कि एक तो कवर लेटर, सबसे पहले आपने कवर लेटर लिखना होता है। जब आप मैन्युस्क्रिप्ट तैयार कर लें, उसके बाद जो फॉर्मेलिटीज हैं, जब आपने किसी जर्नल में सबमिट करना है तो उनको कवर लेटर चाहिए होता है। मोस्टली जर्नल को कवर लेटर चाहिए होता है। यूँ समझ लें कि 95 to 98% जर्नल्स जो है, जब आप उनके ऑनलाइन सबमिशन सिस्टम में जाते हैं तो वहां पे आपसे वो ऑप्शन उन्होंने स्टार लगाया होता है कि कवर लेटर प्लस मैन्युस्क्रिप्ट, ये दो चीजें तो मस्ट चाहिए होती है। इसके अलावा भी कुछ जर्नल जो है वो कहते हैं कि आप फिगर्स जो है वो अपनी अलहदा अपलोड कर रहे हैं। तो जितने भी अर्ली करियर रिसर्चर्स हैं, वो जब कोई भी टूल, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, अपने रिसर्च करते हैं, तो अपनी फिगर्स को अलहदा प्रोड्यूस करके, जो आपने मैन्युस्क्रिप्ट में जिस नंबरिंग से, जिस ऑर्डर से आपने उसको ऐड किया है, उसी तरह आप फोल्डर बना के उसको हाई रेजोल्यूशन में, हाई क्वालिटी में अपने पास सेव रख ले। क्योंकि किसी भी जर्नल में आप सबमिट करेंगे तो हो सकता है ये ऑप्शन आ जाए, तो उस वक्त दोबारा फिर वेस्टेज ऑफ टाइम है कि आप दोबारा जाएं और दोबारा वही कोड या वो सॉफ्टवेयर रन करके आप अपने रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो अच्छा ये है कि जब आप रिसर्च कर रहे हो उस वक्त आपने अपने जितने भी इमेजेस हैं, आपके जितने भी आपकी फिगर्स हैं, उनको आप 1 by 1 साथ साथ हाई क्वालिटी में सेव करते जाएं। और एक स्टैंडर्ड फॉर्म उसका ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक ही इमेजेस में, आप एक ही स्क्रीन पे आपके पास सब इमेजेस हैं, तो आप उसको पूरा नाम देने के बजाय उसको लेटर दे दें कि ABCDEF, और नीचे कैप्शन में उनको एलिब्रेट कर लें कि ए में ये चीज है, बी में ये है और सी में ये है, ठीक है। तो सबसे पहले कवर लेटर द बेस्ट फर्स्ट इंप्रेशन फॉर जर्नल एडिटर, ठीक है। कवर लेटर में आपने लिखना क्या है? कवर लेटर में मोस्टली जो एक ही पेज का आपने लिखना है, उसमें ये चीजें लिखनी है, ठीक है। इंट्रोड्यूस योर मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट टाइटल, आर्टिकल टाइप। आर्टिकल टाइप जिस तरह हमने डिस्कस किया है कि ओरिजिनल आर्टिकल है, और रिव्यू या सर्वे आर्टिकल जिसको हम बोलते हैं, और रैपिड या लेटर कम्युनिकेशंस है, लेटर्स है, या कोई किसी और टाइप की कम्युनिकेशन है, तो आपने उसमें बताना है कि दिस इज ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल और उसका ये टाइटल है। व्हाट व्हाई स्टडी इज इंपॉर्टेंट, ब्रीफ background. Brief means in 1 or 2 lines. Research problem and aims 1 and 2 lines. ठीक है, कि उसका प्रॉब्लम क्या है और आपके एम्स क्या है। व्हाट यू फाउंड, यानी वो जो, अच्छा ये मोस्टली रिसर्चर ये गलती करते हैं कि कवर लेटर में एब्स्ट्रैक्ट को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें तो हमने डिस्कस की थी एब्स्ट्रैक्ट में भी, कि उसका ब्रीफ बैकग्राउंड हो, रिसर्च प्रॉब्लम, एम्स हो, और स्टडी डिजाइन हो, कंक्लूजन हो, ठीक है। मोस्टली आपने जब कवर लेटर लिखना हो तो पहली चीज तो मैन्युस्क्रिप्ट टाइटल, अथर्स प्लस उसकी टाइप आपने बतानी, उसके बाद ब्रीफ बैकग्राउंड, प्रॉब्लम और एम। यहाँ तक तो तकरीबन ये जो सेकंड पार्ट है, व्हाई स्टडी इज इंपॉर्टेंट, ये कहीं किसी हद तक एब्स्ट्रैक्ट का ही होता है। व्हाट यू फाउंड योर स्टडी डिजाइन, यहाँ पे आपने मेन अपनी नॉवेल्टी, अपनी कंट्रीब्यूशन शो करनी है कि आपने एडिटर को बेसिकली कन्विंस करना है कि वो आपका पेपर आगे रिव्यू के लिए भेज दें। जब एडिटर ही कन्विंस नहीं होगा तो आपकी डेस्क रिजेक्शन आ जाएगी। तो आपने यहाँ पे जो मेन कंट्रीब्यूशंस हैं वो हाईलाइट, यानी आपने अपने पेपर के इंपॉर्टेंस पे जोर देना है कि ये जर्नल के लिए बड़ा सुटेबल है, अकॉर्डिंग टू द जर्नल रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस रिक्वायरमेंट है, और इसमें बड़ी मेजर कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, जो आपने की है और वो आपने एनलिस्ट करनी है। कंक्लूजन एंड ट्रस्ट टू द रीडरशिप, व्हाई सुटेबल फॉर द जर्नल, ठीक है, इंटरेस्ट टू द रीडरशिप, यानी जो मोस्टली इस जर्नल की जो रीडर्स हैं उनके इंटरेस्ट से मैच हो रहा है। एडिशनल इंफॉर्मेशन इंक्लूड, आपके पास ऑप्शन है कि आप रिव्यूअर सजेस्ट कर सकते हैं 4-5। अच्छा, ये भी अपने पास
लिख के रख लें कि जो इंटरनेशनल रिव्यूअर्स हैं अपने, जो आपके फील्ड से मैच हो रहे हैं, जिनको आप जानते हैं कि ये अच्छे इस फील्ड में, उनका पूरा डेटा, जिस तरह उनका नेम, उनका जो ईमेल आईडी है, उनकी एफिलिएशन, ये 4-5 रिव्यूअर्स का अपने पास रख लें। कुछ जर्नल्स जो है वो कंपलसरी मांगते हैं कि हमें रिव्यूअर सजेस्ट करके दें, ठीक है। फिर भी उनकी मर्जी होती है एडिटर की कि उनको भेजें या ना, लेकिन वो आपसे मांगते हैं, तो उस वक्त फिर आप इधर उधर देखते रहेंगे। तो पहले से आप ये भी अपने पास लिख के रख लें। और पब्लिकेशन एथिक्स को भी आपने, जिसमें प्लेजरिज्म और इन चीजों को आपने अवॉइड करना है, ठीक है। Write things about the cover letter, convince the editor why the paper fits the journal scope, why readers would find it important, why the paper is important for the field, originality of the research, highlight novelty and impact, ठीक है। Give a brief and largely non-technical summary. Put यानी ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी है, give a brief largely non-technical summary. अब एडिटर जरूरी नहीं है कि जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उस फील्ड का वो एक्सपर्ट हो। तो आपने कुछ ऐसे लिखना है कि अगर उसको उस फील्ड का ABC भी नहीं पता तो उसको समझ आ जाए कि आपने क्या काम किया हुआ है। तो एडिटर को कन्विंस करना जरूरी है। एक्सप्लेन ब्रीफली द स्पेसिफिक एडवांसेस और द प्रीवियस रिसर्च एंड पोटेंशियल एप्लीकेशंस। राइट थैंक्स फॉर अदर स्टेटमेंट्स, यानी यूनिक सबमिशन, article review report, agreement of all co-authors that all co-authors are agreed to submit, potential conflict of interest, co-authors contact details, history of the manuscript, independent reviewer suggestion are directly to the editor in chief. अच्छा, जब भी आपने cover letter लिखना हो तो you are going to address directly to the editor in chief of the journal. जो wrong things about cover letter, paste the abstract, कि मोस्टली अथर्स जो है एब्स्ट्रैक्ट ही पेस्ट कर देते हैं। आपने अपने पेपर की जो है नॉवेल्टी, उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो बतानी है, क्या क्या न्यू चीजें आपने उसमें की है और कितनी वो जो इसकी इंपॉर्टेंस है फॉर द रीडर्स, वो हाईलाइट करनी है। आपने एब्स्ट्रैक्ट पेस्ट नहीं करना है। अवॉइड टाइपो एंड स्पेलिंग एरर्स, मोस्टली लोग करते हैं इसमें। प्रोवाइड द करेक्ट जर्नल टाइटल एंड एडिटर नेम, ये भी बड़ा जरूरी है कि आपने जर्नल के टाइटल को सही लिखना है और एडिटर इन चीफ का जो नेम है उसको भी सही लिखना है। यूज एक्रोनिम्स एंड टू टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज, बहुत सारे एक्रोनिम्स और टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं जो कि गलत है इन कवर लेटर, ठीक है। एक्सीड 2 पेजेस, बहुत बड़ा ही नहीं है, आपने अलहदा से उसको एक और पेपर भेज दिया है। कवर लेटर मींस कि जस्ट 1 पेज का और उसमें आपने बड़ा कंसाइज और प्रिसाइज सब कुछ लिखना अबाउट प्रीवियस रिजेक्शन और इंटरप्रेट योर फाइंडिंग्स, यानी आपने ओवर इंटरप्रेट भी नहीं करना योर फाइंडिंग्स, ठीक है। तो ये कुछ रॉन्ग थिंग्स अबाउट कवर लेटर है जो आपने नहीं करनी। कन्विंस जनरल एडिटर मैन्युस्क्रिप्ट इज सुटेबल। अब पहला, ये तो पहला फेज था कि आपने कवर लेटर लिख दिया है, वो ऐसा लिखा है कि एडिटर ने उसको, अब जो अच्छे जर्नल है, हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल है, वो फौरन जो है आपका पेपर रिव्यू में भेजते ही नहीं है, बल्कि हफ्ता 10 दिन महीना तक तो एडिटर लगा रहता है उसको रिव्यू करने में, जो एडिटोरियल बोर्ड बैठा होता है। तो इस वजह से उनको कन्विंस करना बहुत जरूरी है। जब वो कन्विंस होंगे तो आपका पेपर पेयर रिव्यू में जाएगा और फिर उसके बाद उसकी कुछ रिवीजन या एक्सेप्टेंस के चांस बनेंगे। जब तक एडिटर ही कन्विंस नहीं होंगे आपका पीयर रिव्यू में नहीं जा सकता। तो पीयर रिव्यू इज अ हॉरिबल प्रोसेस, जो कि बहुत सारे जो रिव्यूअर्स एक्सपर्ट्स होते हैं वो ऐसे इस अंदाज में खड़े होंगे जो आपके पेपर में से कांट छांट करेंगे, लेकिन expert give advice on how to improve your study and your manuscript, ensures only relevant studies are published, peer review help to advance the field। तो आपने इन सारी चीजों को आपने पॉजिटिव लेना है। अच्छा, जो होल प्रोसेस सबमिशन का होता है कैसे, फर्स्ट स्टेप इज अनदर सबमिट्स मैन्युस्क्रिप्ट टू द जर्नल, यानी जो डेस्क पे पहले आता है, उसके बाद जर्नल स्क्रीन्स द मैन्युस्क्रिप्ट। यहाँ से जर्नल की स्क्रीनिंग होती है, आपके मैन्युस्क्रिप्ट की स्क्रीनिंग होती है जर्नल के डेस्क से, कि वो देखते हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं
जो स्कोप ऑफ द जर्नल है उसके मुताबिक आपका पेपर उस पे लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, और जो रिक्वायरमेंट्स है, जो अतर गाइडलाइंस होती है हर एक जर्नल में, ठीक है, जहाँ पे सारी गाइडलाइंस अतर को दी जाती है कि आपने एब्स्ट्रैक्ट कितने वर्ड्स का लिखना है, ठीक है, और आपने पेपर कितने लेंथ का लिखना है, 8 पेजेस है, 10 पेजेस है, आपने फिगर्स कितनी डालनी है, मोस्टली 8 से 10 फिगर्स एनफ नहीं होनी चाहिए किसी भी मैन्युस्क्रिप्ट में, आपने टेबल्स कितने डालने हैं, ठीक है, और रेफरेंसेस जो है वो कितने होने चाहिए। कुछ जर्नल मैंने ऐसे देखे हैं कि रेफरेंसेस भी लिमिटेशन है कि आपने रेफरेंसेस 30 या 35 से ज्यादा नहीं डालने, ठीक है। तो आप ये भी कोशिश करें व्हाइल राइटिंग योर मैन्युस्क्रिप्ट कि अननेसेसरी जो पेपर्स हैं उनको साइड ही ना करें, और दूसरा कोशिश ये करें कि जर्नल्स के पेपर को सिर्फ साइड करें, कॉन्फ्रेंस को साइड ही ना करें। उसके बाद जब यहाँ से एक डिसीजन हो जाता है कि आपका जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो सुटेबल फॉर पेयर रिव्यू और नॉट, इफ नो तो डेस्क रिजेक्शन आ जाती है जो कि बहुत बुरी होती है, और अर्ली कैरियर रिसर्चर के लिए अगर फॉरन डेस्क रिजेक्शन आ जाए तो बड़ा नाउम्मीद हो जाता है। द मैन्युस्क्रिप्ट इज रिजेक्टेड आउटराइट, ठीक है। अगर यस है तो पीयर रिव्यू का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। द पेपर इज सेंट टू पीयर रिव्यू टू 2 और मोर रिव्यूअर्स, मोस्टली 4-5 को भेज देते हैं, तो उनमें से अगर 2 का रिव्यू आ जाए या 3 का आ जाए तो वो आपको रिप्लाई कर देते हैं बेस्ड ऑन द रिव्यूअर कमेंट्स कि आपका पेपर रिजेक्ट है, एक्सेप्ट है या रिवीजन रिक्वायर्ड है, और डायरेक्टली कभी भी पेपर एक्सेप्ट नहीं होता। The reviewers check the paper and share their comments and recommendation with the journal editor, ठीक है। उसके बाद the journal editor check the reviewer reports and recommendation, accept without changes, very rare, ठीक है, होता ही नहीं है, क्योंकि हर बंदे ने अपनी कुछ ना कुछ तो इनपुट देनी है, कोई एफिशिएंसी तो दिखानी है कि आपने पेपर भेजा है, कुछ ना कुछ गलती तो लाजमी निकल आनी है, तो आपने सारी चीजों को पॉजिटिव लेना है। तो इस वजह से डायरेक्ट एक्सेप्टेंस के चांसेस बहुत रेयर होते हैं। उसके बाद रिवाइज एंड रीसबमिट, ये मेजर रिवीजन है, और रिवाइज एंड रीसबमिट माइनर रिवीजंस या रिजेक्ट, ये 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। जो पहली वाली जो है उसको आप निकाल दे तो मेरी नजर में 3 पॉसिबिलिटीज है कि आप या मेजर रिवीजंस आ गई, या माइनर आ गई है, या रिजेक्ट, ठीक है। उसके बाद जर्नल एडिटर्स आस्क द ऑथर्स टू मेक द रेलेवेंट चेंजेस। अब वो एडिटर जो है वो रिव्यूअर के जो कमेंट्स हैं वो आपको फॉरवर्ड कर देता है। द ऑथर रिवाइज द पेपर एंड सेंड इट बैक टू द जर्नल, ऑथर उसको रिवाइज कर देता है और दोबारा जर्नल को भेज देता है वापस। आप फिर दोबारा जर्नल दोबारा उसको स्क्रीन करते हैं, फिर उनकी मर्जी है कि वो एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, या उसको राउंड 2 में भेजें फॉर रिव्यूअर्स चेक द पेपर वंस अगेन, कि दोबारा इसमें इसको जरूरत है कि नहीं, ठीक है। ये फिर आप पे है कि आपने रिव्यूअर्स को रिस्पांस कितना अच्छे से दिया है कि उससे एडिटर या जर्नल टीम कन्विंस हो गई है, उन्होंने आपका पेपर एक्सेप्ट कर दिया और उसको राउंड 2 में जाने ही नहीं दिया, ठीक है। क्लियरली डिस्कस ऑल ऑफ योर रिविजन्स। कवर लेटर हो गया, आपने सबमिट कर दिया, डेस्क रिजेक्शन से आप बच गए, रिव्यूअर में चला गया, रिव्यूअर ने आपको कमेंट्स भेज दिए। नाउ यू आर गोइंग टू रीसबमिट योर पेपर, राइटिंग रिस्पांस लेटर्स, क्लियरली डिस्कस ऑल योर रिवीजन। मोस्ट कॉमन मिस्टेक के अतर लिख देते हैं कि द रिवीजन हैव बीन डन, नॉट व्हाट द रिवीजंस वर, ठीक है। तो ये ठीक नहीं है कि आप जस्ट एक ईमेल कर दें और या ये सबमिट करके भेज दें, आपने कहीं भी कोई हाईलाइट नहीं किया हुआ है कि कहाँ पे आपने कौन सी रिविजन्स की है। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो दोबारा आपका पूरा पेपर पढ़ें कि आपकी रिवीजन कहाँ कहाँ पे है। और ये चीज आपने अपने एमएस पीएचडी के थीसिस लिखते हुए भी इन चीजों का ख्याल करना है कि जब भी आप रिवीजन जमा कराएं तो वो आप ट्रैक चेंजेस करके करें या उसको हाईलाइट करें, कोई चीज ऐसी करें कि वो पता लगे कि ये जगह पे चेंजेस हुई है, बाकी सेम है, ठीक है। तो आपने जर्नल एडिटर आर वेरी बिजी, मेक रिवीजन इजी टू रिव्यू, ठीक है। ब्रीफली स्टेट व्हाट वाज रिवाइज्ड, ऑलवेज रेफर टू अ पेज एंड अ लाइन नंबर। कोशिश ये करें कि जब आप रिवीजन करें व्हाइल रीसबमिटिंग योर मैन्युस्क्रिप्ट, रेफर टू द पेज नंबर और लाइन नंबर और एटलीस्ट द सेक्शन नंबर। आपके पास सेक्शन 1 इंट्रोडक्शन है, सेक्शन 2 जो है वो लिटरेचर रिव्यू है, 3 जो है आपकी मेथोडोलॉजी है, 4 रिजल्ट्स हैं।
तो आप कम से कम सेक्शन नंबर और पेज नंबर को रेफर करें कि ये सेक्शन है इस पेज पे, या उसको फिर हाईलाइट करें। अगर आपने कमेंट में सिंपल ये लिखना है तो आप उसको फिर हाईलाइट कर दें कि ये रेड कलर में हाईलाइटेड है विद इन द मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। एंड मैन्युस्क्रिप्ट हाईलाइट द रिवाइज टेक्स्ट, ठीक है। रीजन फॉर रिजेक्शन, जो मोस्ट कॉमन रीजन है फॉर रिजेक्शन या डेस्क रिजेक्शन की, कि करेक्ट फॉर्मेटिंग ऑफ योर पेपर, इनएप्रोप्रिएट स्कोप एंड ऑडियंस, यानी आपका पेपर जो जर्नल का स्कोप है उसमें उससे मैच ही नहीं कर रहा है, ठीक है। अनएडुकेट लिटरेचर साइटेशन, आपने कोई अच्छा ये भी एक थोड़ा सा कोशिश कर लिया करें कि जिस जर्नल में आप भेज रहे हो ना उनके एक दो पेपर अगर आपके फील्ड से मैच हो रहे हो तो साइट कर लिया करें, क्योंकि एडिटर ये भी देख रहा होता है। तो अगर उस जर्नल की कोई साइटेशन हो तो थोड़ी सी इंटरेस्ट और बढ़ जाती है कि आपको प्लस पॉइंट मिल सकता है। जरूरी नहीं है लेकिन मिल सकता है। लेक ऑफ नोवेल्टी, रिजेक्शन की वजह की कोई नोवेल्टी है ही नहीं, आपने वही सेम चीज उठा के दोबारा भेज दी। फ्लॉज इन मेथोडोलॉजी, जो आप कह रहे हैं जो रिजल्ट्स है जो मेथोडोलॉजी है उसमें बहुत फ्लॉ है। सेल्फ प्लेजरिज्म, टेक्स्ट प्लस इमेज, यानी ये दोनों रिजेक्शन के चांसेस बढ़ा देते हैं। लिमिटेड impact or conclusion not supported by the data, premature publication, lack of interpretations, research data not available, यानी ये कुछ वो कॉमन रीजंस हैं जिनकी वजह से आपका पेपर एडिटोरियल बोर्ड से ही रिजेक्ट हो जाता है, डिस रिजेक्शन आ जाती है, कि जिसमें बड़ा क्लियर नजर आ रहा होता है कि आपने लेक ऑफ नोवेल्टी है, मेथोडोलॉजी में फ्लॉज है, या आपकी इंटरप्रिटेशन सही नहीं है, या प्रीमेच्योर पब्लिकेशंस है, या प्लेजरिज्म हुई हुई है, ठीक है, तो आपकी फौरन रिजेक्शन आ जाती है। उसकी जो समरी है जो हमने मेन चीजें डिस्कस की है कि नो योर फील्ड, जो पहले हमने बात की, उसके बाद हमने कहा कि पिक द राइट जर्नल, राइट वेल, फॉलो द सबमिशन रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जर्नल यू आर सबमिटिंग, एक्सेप्ट द फीडबैक एंड रिवाइज अकॉर्डिंगली। अच्छा, प्रिपेयर्ड जर्नल हो गया, लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड मैन्युस्क्रिप्ट हो गया, सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया, नो रेडी टू प्रमोट। लेकिन मैं एक और चीज आप लोगों के साथ, ये जो मैंने रिवीजन की बात की, मैं स्क्रीन शेयर करूं आप लोगों के साथ, कि आपने जब आपकी रिवीजन आ जाएं तो आपने उसका रिस्पांस कैसे देना है, वो जस्ट मैं आप लोगों को दिखा दूं। आई थिंक सो, स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही होगी। अच्छा, मोस्टली जर्नल्स का ये होता है, ये मेरे अपने एक पेपर का रिस्पांस है जो मैंने तैयार करके भेजा था 2000 ड्यूरिंग माय पीएचडी, बहुत पुराना है, वही शो करवा रहा हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, अदर रिस्पांस टू द रिव्यूअर कमेंट्स, ये मोस्टली जर्नल्स का ऐसा है कि उनके ऑनलाइन सबमिशन सिस्टम में वो बता देते हैं कि आपने कैसे रिस्पांस करना है। इन केस उन्होंने नहीं बताया कि रिस्पांस कैसे करना है, जस्ट आपको कहा है कि रिवाइज एंड रीसबमिट, तो आपने खुद से ऐसे एक तैयार कर लेना। ये स्टैंड अलोन किसी जर्नल का है, क्लास 1, जिन्होंने मुझे नहीं बताया था कि आप लोगों ने आपने रिवाइज कैसे करना है। उन्होंने जस्ट कहा था कि आप रिवाइज और रीसबमिट करते हैं और ट्रेड चेंजेस के साथ जस्ट पेपर सबमिट करते हैं। उन्होंने ये रिस्पांस नहीं मांगा था जो मैंने खुद से तैयार किया था, कि जर्नल का नेम क्लास 1 और जो मैन्युस्क्रिप्ट आईडी, जो कि जर्नल में जब आप सबमिट करते हैं तो आपके पेपर को एक आईडी असाइन हो जाता है, ये वो आईडी है। टाइटल ऑफ द पेपर क्या था, वो ये था। अथर्स कौन से हैं, वो ये है, ठीक है। डेट सेंट, कब मैंने जमा किया था, और रिवीजन डेट कब आई थी। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल वी अप्रिशिएट द टाइम एंड एफर्ट बाय एडिटर एंड रेफरीज in reviewing the manuscript. We have addressed issues indicated in the review report and believe that the revised version can meet the journal publication requirement. We have added some more figures and tables as per your suggestion. Please refer the following tables to locate your desired table and figure. ठीक है, फिर उसमें लिस्ट ऑफ फिगर्स एंड टाइटल्स, पहले तो मैंने वो बना दिया कि ओल्ड नंबर ये थे तो रिवाइज नंबर ये हो गए, ये न्यू फिगर ऐड हो गई है, ये न्यू फिगर, ठीक है। उसके बाद रिस्पांस टू कमेंट्स फ्रॉम रिव्यूअर 1, उसने जो कमेंट 1 किया था उसका रिस्पांस ये है, और ये उस पेपर में भी हाईलाइट मैंने कर दिया है। रिव्यूअर 2 उसका रिस्पांस ये है। अलहदा से मैंने उनकी इजीनेस के लिए कि वो
इजी वे में उसको रीड कर सके, ये कमेंट 3 है और उसका रिस्पांस ये है, कमेंट 4 और उसका रिस्पांस ये है। इस तरह फिर रिस्पांस फ्रॉम फॉर द कमेंट्स फ्रॉम रिव्यूअर 2, रिव्यूअर 2 ने जो कमेंट्स किए थे उसका कमेंट वाइज रिस्पांस, फिर रिस्पांस टू द कमेंट्स फ्रॉम रिव्यूअर 3, उसने जो कमेंट्स किए थे उसका हर एक का कमेंट 1 रिस्पांस, कमेंट 2 रिस्पांस। तो ये एक रिवाइज लेटर होता है जो आप भेजते हैं दोबारा अपने पेपर के साथ उसको अटैच करके। ये शो करवाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आप लोगों ने हर एक चीज बड़ा प्रिसाइसली, यानी आपने हवा में कोई बात नहीं करनी, जो भी आप कर रहे हैं वो आपने शो करवाना है, वो आपने बताना है। ठीक है, मैं दोबारा स्लाइड शेयर कर लूं। अच्छा, मोस्टली मैंने ये देखा है कि ये 3 तो हो जाते हैं मोस्टली हमारे, स्पेशली इन पाकिस्तान। हम अपने रिसर्च को प्रमोट नहीं करते हैं, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। once you are published, now you just have to wait for all those citation to start rolling in। यानी जरूरी नहीं है कि आपने पब्लिश कर दिया है तो आपने उसकी साइटेशन खुद बहुत स्टार्ट हो जाए। बहुत इतनी नोवेल्टी अगर हो तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज हमने खुद भी अपनी मार्केट को शेयर करें, उसको डेसिमेट करें एज मैक्सिमम एज यू कैन, प्रमोट योर रिसर्च। और उसको प्रमोट करने से इंक्रीज द इम्पैक्ट ऑफ योर रिसर्च बढ़ जाता है, मेक द रिजल्ट ट्रस्टवर्दी, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ your publishable research, increase citation, get additional publications, improve educational experience and enhance research led teaching, increase reputation। यानी ये तो कुछ बेनिफिट्स हैं जो डेफिनेटली आपको हो जाते हैं। अजय, आपने अपने रिसर्च को प्रमोट कैसे करना है? आपके पास डिफरेंट प्रोफाइल आपने क्रिएट करने हैं, डिफरेंट आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे क्रिएट योर रिसर्च प्रोफाइल आइडेंटिटी। गूगल स्कॉलर, बहुत सारे रिसर्चर ऐसे हैं जो गूगल स्कॉलर पे अपना प्रोफाइल नहीं बनाते हैं। जिस तरह आप इसको लॉगिन करेंगे तो डेफिनेटली सिंपल प्रोसेस है, जिस तरह आप जीमेल पे अकाउंट बनाते हैं इस तरह प्रोफाइल बनाने का भी सिंपल वे है। उस पर आप प्रोफाइल बनाएंगे तो जो आपके पेपर है आप उसमें ऐड कर देंगे गूगल स्कॉलर। उसके अलावा ORCID है, इस पे अपना प्रोफाइल बनाएं, और पबलॉन्स है, इस पे अपना प्रोफाइल बनाएं। रिसर्चर आईडी, अच्छा ये रिसर्चर आईडी, पबलॉन्स और ORCID ये आपस में स्कूपस, ये 3-4 आपस में लिंक्ड है। आप एक में बनाएंगे तो वो जस्ट आई वुड सजेस्ट कि आप ORCID पहले बना लें। बहुत सारी जगह पे आपसे ORCID, बल्कि इवन अब तो जर्नल कुछ ऐसे हैं कि जब तक ORCID ना हो आपकी सबमिशन एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। ज्यादातर अगर आपका ORCID नहीं है, क्योंकि ये एक यूनिक आइडेंटिफायर नंबर ऑफ द अथर है। मोस्टली ये है कि अगर मेरा नेम, मेरा हमनाम कोई है तो वो मेरे पेपर्स को क्लेम कर सकता है, ठीक है, अपने गूगल स्कॉलर में ऐड कर सकता है। लेकिन ये ORCID ऐसा है जिस तरह आपका आईडी कार्ड नंबर के यूनिक होता है। तो जितने भी रिसर्चर्स हैं वो इस पे अपना प्रोफाइल लाजमी बनाएं। तो इसमें आप अपने पेपर भी ऐड कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली भी ऐड हो रहे होते हैं जैसे ही पब्लिश होता है। तो बहुत सारी ये सारी डेटाबेसेस के साथ मोस्टली लिंक्ड है, तो वो ऑटोमेटिकली खुद भी आपके प्रोफाइल में पेपर ऐड हो जाते हैं। आपको जिस तरह गूगल स्कॉलर है, जैसी आपकी न्यू पब्लिकेशंस आएगी आपको खुद से ऐड करने की जरूरत नहीं होगी, आपके नाम से वो खुद ही उसमें ऐड हो जाएगी, क्योंकि वो लिंक्ड है। गूगल स्कॉलर जो इंडेक्सिंग है ना, जो मैं बात कर रहा था कि कहाँ कहाँ इंडेक्सिंग है, तो वो डिफरेंट डेटाबेसेस है जिस तरह गूगल स्कॉलर, ORCID, ठीक है, इनके साथ भी उनकी इंडेक्सिंग हुई होती है, पबलॉन के साथ भी उनकी एसोसिएशन हुई होती है, तो वो ऑटोमेटिकली जो आप काम कर रहे होते हैं वहां पे ऐड हो जाता है। इसके अलावा रिसर्च गेट पे ये रिसर्च गेट और IEEE कोलैबोरेटिव, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे डिफरेंट, आप अपने रिसर्च के हवाले से भी क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं रिसर्च गेट पे। आपको कोई मुश्किल आ रही किसी भी इम्प्लीमेंटेशन में, डिलीवरिंग योर रिसर्च या राइटिंग में, या कहीं भी आपको कोई चीज चाहिए, कोई डेटा सेट चाहिए, कोई और टूल्स चाहिए, तो आपने जस्ट यहाँ पे आस्क का क्वेश्चन का एक ऑप्शन आ रहा होता है, आपने जस्ट अपना क्वेश्चन पोस्ट कर देना है रिसर्च गेट पे, IEEE कोलैबोरेटिव पे। तो डेफिनेटली बड़े पॉजिटिव लोग हैं बैठे में जो आपको रिस्पॉन्ड कर देते हैं। डोंट वेट फॉर द पीपल टू फाइंड यू, आपने अपने रिसर्च
अच्छा, इसके अलावा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, तो उसमें आप लेस समरी आप अपने आर्टिकल की एक लिख सकते हैं, और इसके अलावा उस लेस समरी को आप जो लोकल न्यूज़पेपर्स हैं उनमें भी आप पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, लेस समरी में आपको आप जस्ट एक प्लेन इंग्लिश में उसको लिखते हैं कि आम रीडर को, जो इंजीनियरिंग का या साइंस का बंदा नहीं है, उसको भी समझ आए, जस्ट इन प्लेन इंग्लिश आपने उसको लिखना होता है। ठीक है, अपने रिसर्च को ब्रॉडर उसका स्कोप करने के लिए, उसका रीडर्स इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, यानी प्रमोट यूर रिसर्च आर्टिकल आफ्टर पब्लिकेशन। ये वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे आप इसको मैंडले रिसर्च के, ट्विटर, गूगल, लिंक्डइन, फेसबुक, ठीक है, और सीआईडी, यूट्यूब, हमारे पास डिफरेंट ये वेज है जिसके थ्रू हम अपने रिसर्च को एस्टिमेट कर, जितना ज्यादा हम प्रमोट करेंगे उतनी ज्यादा उसकी साइटेशन बढ़ेगी, उसकी वर्क बढ़ेगी, लोग कमेंट्स करेंगे, लोग आपसे राब्ता करेंगे, आपके अपने पीयर्स में एक रिकग्निशन बन जाएगी। और इसके अलावा जो डिफरेंट जर्नल्स है उसमें कंटेंट शेयरिंग का डायरेक्ट ऑप्शन होता है, जहां से आप अपने उसको फेसबुक, ट्विटर या डिफरेंट ब्लॉग्स पे, लिंक्डइन, इन पे शेयर कर सकते हैं। ये डिफरेंट डायरेक्ट ऑप्शंस होते हैं। बी इफेक्टिव कम्युनिकेटर, इसमें लॉजिकल मैन्युस्क्रिप्ट स्ट्रक्चर, इफेक्टिव पब्लिकेशन स्ट्रेटेजी, सक्सेसफुल जर्नल सबमिशन, मार्केट योर रिसर्च, ये चार हो गए। लास्ट 2 स्लाइड्स हैं अबाउट प्रेडेटरी जर्नल्स। प्रेडेटरी जर्नल्स जो है, ये वो जर्नल्स हैं जो आपको हाईजैक कर लेते हैं। ठीक है, जो अर्ली रिसर्चर्स होते हैं उनको नहीं पता होता, प्रोटेक्ट योर रिसर्च रेपुटेशन एंड फंडिंग फ्रॉम थेफ्ट एंड फ्रॉड बाय प्रेडेटरी जर्नल्स। अच्छा, इन जर्नल्स को आपने इनसे बचना कैसे है, ये नीचे 2-3 मैंने लिंक्स दी हुई है। एक तो डॉज, जो डायरेक्टरी ऑफ ओपन जर्नल, ओपन एक्सेस जर्नल्स हैं, और बेल्स लिस्ट, इसने एक लिस्ट क्रिएट की थी कि ये प्रेडेटरी जर्नल है, और कुछ इसकी वार्निंग या अलार्मिंग साइंस है जिससे आपको फौरन पता लग जाता है कि ये प्रेडेटरी जर्नल है। फिर आप अपने सुपरवाइजर से, अपने जो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, उनसे आप मशवरा करके फिर जर्नल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको एट फर्स्ट इंस्टेंट फौरन पता लग सकता है वो कौन कौन से अलार्मिंग साइंस हैं। एक तो ये है कि एग्रेसिवली बहुत सारी आपके पास ईमेल्स आ रही होगी डिफरेंट जर्नल्स की तरफ से कि हमारे पास आप पेपर सबमिट करवाएं, डिफरेंट इन्विटेशंस आ रही होगी, तो ये प्रेडेटरी जर्नल हो सकता है। दूसरा, अगर आप जर्नल की वेबसाइट पे जाएं तो वो बड़ी अनप्रोफेशनल होगी, उसमें मैसयूज लैंग्वेज, डेड लिंक्स होंगे, कोई क्लिक करें तो कोई लिंक भी ओपन नहीं होगा, और बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट एग्रेसिव टाइप की हो रही होगी उस पे, और उस पे कोई नो स्ट्रीट एड्रेस और कंट्री, पब्लिशर वेबसाइट या पब्लिशर वेबसाइट, कोई टेलीफोन नंबर्स, फेक एड्रेसेस होंगे उस पे। ठीक है, इसके अलावा उसकी कोई प्रोसीजर या पॉलिसी जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगी अबाउट पेमेंट्स, पब्लिकेशन एथिक्स या कॉपीराइट, और इसके अलावा एपीसी दैट आर नॉट ट्रांसपेरेंट, यानी बहुत लो और बहुत हाई जो है, ये मे बी प्रेडेटरी, नॉट श्योर लेकिन प्रेडेटरी हो सकता है। Does the editorial board have recognizable and reputable members, ये आपने देखने हैं उनकी एफिलिएशन। और दूसरा फिर आपने चेक कर लेना है कि उन जो एडिटर्स है उन्होंने अपने पर्सनल या जो उनकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उस पर भी उस जर्नल को मेंशन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ मेंबरशिप उसमें होनी चाहिए। लेक ऑफ जर्नल इंडेक्सिंग, डिफरेंट इंडेक्सिंग जो है उसकी वो बड़ी शॉर्ट होती है, और ब्रॉड कवरेज अक्रॉस मल्टीपल स्पेशलिटीज। ठीक है, बहुत, यानी दुनिया जहान की जितनी साइंसेज है वो उन्होंने मेंशन किया होता है कि आप इसमें पेपर भेजे हो जाएगा। यानी जो अच्छे जर्नल हैं उनका स्कोप बड़ा नैरो होता है, एक लिमिटेड फ्रेमवर्क में वो चल रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप बायोलॉजी का कोई स्टूडेंट है, कोई केमिस्ट्री का है, कोई एनवायरमेंटल साइंसेस का है, कोई मैथमेटिक्स का है, कोई इंजीनियरिंग का है, तो सारे उसमें पेपर भेज सकते हैं। हाँ, भेज सकते हैं अगर वो उनका पेपर उस स्कोप से मैच हो रहा हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उनका स्कोप इतना ब्रॉड हो कि वो हर टाइप की फील्ड को जाए वो कवर करे। दूसरा, एक और इम्पॉर्टेंट कि जो सिंपल सबमिशन सिस्टम जो जिन जर्नल्स का होता है ना कि आप ईमेल दिया होता है कि जस्ट ईमेल कर दें, मतलब वो तो कंफर्म प्रेडेटरी होता है मेरी नजर में, कि जो जस्ट इन्होंने, इनका कोई सबमिशन सिस्टम ही नहीं है पेपर का कि आपने उसमें पेपर सबमिट करना है, वो फिर आगे असाइन होगा टू एडिटर इन चीफ, फिर एडिटोरियल बोर्ड को, फिर आगे रिव्यूअर्स को, और वो डायरेक्ट आपको ईमेल कर दें और आपसे पैसे मांग ले, तो ये तो प्रेडेटरी जर्नल है कंफर्म।
inaccessible और poor quality के पेपर होते हैं उसमें does the journal produce errors, ठीक है, ये भी आपने देखना है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, यानी कुछ आपसे वो मांगते हैं, ये इतना सिस्टम उनका इतना सिंपल होता है कि ना वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कोई परफॉर्म आपसे फिल करवाते हैं, ना अदर्स की क्वालिफिकेशन इंफॉर्मेशन आपसे, ना एफिलिएशन आपसे मांगते हैं, ना को अदर्स की वो एग्रीमेंट मांगते हैं कि वो एग्री है यहाँ पे उसमें सबमिट करने में, उस जर्नल में। डज द जर्नल हैव अ रेप्यूटेबल पब्लिशर, ये भी आपने देखना है कि जो रिप्यूटेबल पब्लिशर, जो वेल नोन पब्लिशर्स है, जिस तरह IEEE हो गया, स्प्रेंगर हो गया, एल्सवेयर हो गया, प्लास हो गया, हिंदावी, MDPI, तो ये वेल नोन पब्लिशर्स हैं। सेग हो गया, ठीक है, वेले हो गया, अगर इनसे कोई बिलोंग करता है तो वो ठीक ही होगा, लेकिन मजीद आपने उसको इन्वेस्टिगेट करना है इस वे से। तो ये सारी चीजें आपने, मैंने इसी एक कहीं से मुझे वेले की उस पर एक पब्लिश हुआ हुआ था, बड़ा अच्छा मुझे लगा, तो मैंने वहां से उठा लिया है। उसका भी यही सेम यही प्रोसीजर उन्होंने कहा है कि अगर वो कोप जो कमेटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स को सेटिस्फाई कर रहा है तो ठीक है, अगर फिर एंड सेकंड में अगर उसका स्कोप नैरो है, फोकस्ड है, अगर ये यस है, उसके बाद एडिटोरियल बोर्ड मेंबर एक्सपर्ट है, ये भी यस है, ज्योग्राफिकल जो उसकी लोकेशन और कांटेक्ट नंबर इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइडेड है, ये यस है, और एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी फ्री ऑफ एग्रेसिव ईमेल्स है, तो अगर ये भी यस है, डज द जर्नल हैव एन ऑनलाइन सबमिशन सिस्टम, ये भी यस है, डज द जर्नल सबमिट द फिनिश आर्टिकल्स टू द सेंट्रल स्टोरेज प्लेटफॉर्म, यानी डिफरेंट जो इंडेक्सिंग है वहां पे इंडेक्सिंग है उसकी, अगर ये भी यस है, आर द आर्टिकल्स well done scientific work and without typographical and grammar error, अगर ये भी yes है, then a journal can be considered for publication. अगर नहीं है तो journal shall be considered with a caution. Consider journal is suspicious for being a predatory journal. Thank you. Now your turn for questions. सर ये इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो मिनिमम सर कितना होना चाहिए? इम्पैक्ट फैक्टर मिनिमम कितना होना चाहिए? जी सर। मिनिमम की तो लिमिट है 0। मिनिमम वैसे स्टार्ट होता है 1 से लेस भी है, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, ऐसे भी है 0.9। मतलब इंजीनियरिंग के मैंने जितने देखे हैं तो हार्डली कुछ ऐसे जर्नल्स हैं जो जिनमें हम पब्लिश कर सकते हैं जिनकी 4 या 5 से ऊपर इम्पैक्ट फैक्टर है। मोस्टली स्टार्ट ही यहाँ से जो अर्ली कैरियर रिसर्चर है वो 0 पॉइंट की समथिंग, ऐसे हाई में भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन स्पेशली जो MS स्टूडेंट है वो इनको टारगेट करें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक सर। सर जर्नल में सबमिशन साइकिल और कॉन्फ्रेंस का सबमिशन साइकिल सेम है या इसमें कोई डिफरेंस है? सबमिशन साइकिल मींस एक तो जर्नल में अगर आप सबमिट करेंगे तो पहले आपसे वही इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी कि आपका नेम, ईमेल आईडी, एफिलिएशन प्लस योर को ऑथर्स आपके पास जितने होंगे वो, उसके बाद फिर वो आपसे टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, उसके बाद फिर वो आपसे कवर लेटर, मैन्युस्क्रिप्ट मांगते हैं कि वो अपलोड करें, और कुछ जनरल फिगर्स मांगते हैं वो अपलोड करें। उसके बाद कुछ 2-3 फॉर्म्स होते हैं कि आपने कोई डुप्लीकेट सबमिशन तो नहीं कर रहे हैं, कि और जो सबमिटेड नहीं है, या एथिकल, इसमें कोई वो तो इन्वॉल्व नहीं है कि ह्यूमन या एनिमल्स की कोई सैंपल्स हो, तो वो तो इन्वॉल्व नहीं है इसमें। वो कुछ चेक्स होते हैं, उसको आप ओके ओके करके एट द एंड आप सबमिट कर देते हैं। कॉन्फ्रेंस का भी ऐसे ही है कि आपसे वो इसी तरह नेम्स प्लस एफिलिएशंस, टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट और आप पेपर अपलोड कर देते हैं, जो सबमिशन सिस्टम है। और रिव्यू भी तकरीबन सेम ही है, लेकिन कॉन्फ्रेंस जो टॉप टायर कॉन्फ्रेंसेस है वो थोड़ी हार्ड है, लेकिन मोस्टली कॉन्फ्रेंसेस का रिव्यू सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता एज कंपेयर टू जर्नल, क्योंकि जर्नल मस्ट जो है वो 2-3 रिव्यूज आ जाए तब आपको वो आंसर करते हैं, आपको एडिटर इन चीफ दोबारा रिप्लाई करता है कि आपका पेपर जो है वो एक्सेप्ट है या मेजर रिवीजन है या माइनर है या रिजेक्ट है। जबकि कॉन्फ्रेंस में इतनी जो है वो टफ क्राइटेरिया वहां पे नहीं है। वहां पे भी रिवीजन होती है, रिव्यूअर्स होते हैं, वो आपका पेपर रिव्यू करते हैं, लेकिन इतना टफ क्राइटेरिया नहीं है एज कंपेयर टू द जर्नल।
सर अगर हमने एक मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करवाया है और उसका 3-4 मंथ्स उसका पूरा प्रोसेस चल रहा है और रिव्यू करने के बाद भी उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया है, तो क्या वो अब हमारा वेस्ट है? क्या हम उसको दोबारा नेक्स्ट किसी और जर्नल में सबमिट करवा सकते हैं कि वो वेस्ट हो गया? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। होता ही है। वैसे मैं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस अगर शेयर करूं तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि जब मुझे लगता है कि मेरा पेपर कुछ काम का है, मैंने कुछ इसमें कंट्रीब्यूशन की हुई है, तो मैं उसको जरा हाई इम्पैक्ट फैक्टर में भेज देता हूं। हाई इम्पैक्ट फैक्टर मींस कि 3 नियर अबाउट 3 या 3 से थोड़ा सा ऊपर। उसमें भेजने की वजह क्या होगी? मुझे पता होता है कि इससे रिजेक्ट, ये पेपर मेरा रिजेक्ट होगा, लेकिन जो उस पे कमेंट्स आ जाते हैं रिव्यूवर्स के, डेफिनेटली वो उनके बड़े एक्सपर्ट्स रिव्यूवर्स होते हैं। जब उनके पास आपका पेपर चला जाता है तो वो उस पे कमेंट्स देते हैं। यानी रिजेक्शन भी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्शन नहीं करते हैं। जब रिव्यूवर्स 3-4 महीने वो रिव्यू में चला जाता है तो उसके बाद वो रिव्यूवर के कमेंट्स आपको भेज देते हैं। तो वो 2-3 रिव्यूवर्स के जब एक्सपर्ट्स के कमेंट्स आपके पास आ जाए, वो आप इनकॉर्पोरेट कर लें अपने पेपर में, तो आपके पेपर की क्वालिटी और बेटर हो जाती है। यानी इन द सेम पैटर्न या इन द सेम फॉर्मेट आपने दोबारा सबमिट नहीं करना। आपने कोशिश ये करनी है कि जो प्रीवियस रिविजन्स आई है मेरे पास, मैं उनको इनकॉर्पोरेट कर लूं। वो आप इनकॉर्पोरेट करोगी तो आपके पेपर की क्वालिटी डेफिनेटली बेटर हो जाएगी, और उसके बाद आप किसी और जर्नल में सबमिट कर लें तो वो पब्लिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं उसके। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम सर। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि लिटरेचर रिव्यू में जैसे अभी 2020 चल रहा है जी सर। तो टेस्ट हम पेपर्स तो साइड करेंगे तो लास्ट ईयर 2019-18 तक जा सकते हैं? सर ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बल्कि मैं इस पे कमेंट करूंगा, बाकी भी सुन लें। क्योंकि मोस्टली जो लिटरेचर रिव्यू ये है ना कि आप कोशिश की करें कि रिसेंट उठाएं, और रिसेंट से फिर आप बैक पे आए। यानी रिसेंट आपका मस्ट साइट होना चाहिए। 2020 और 2019, 2018 ये तो मस्ट साइट होना चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि आपने एट द एंड अपने रिजल्ट्स की जस्ट एनालिसिस नहीं करनी, आपने उसकी कंपैरिजन प्लस वैलिडेशन भी करनी है। तो आप कंपैरिजन वैलिडेशन आप 1998 या 2000 के पेपर से नहीं कर सकते जब तक लेटेस्ट पेपर ना हो। लेटेस्ट पेपर से आपने कंपैरिजन, आपके कोई रिजल्ट्स आए और आपने लेटेस्ट पेपर से उसको कंपेयर करके अपने रिजल्ट बेटर शो करवाएं, तो आपके पब्लिकेशन के जो पेपर के एक्सेप्टेंस चांसेस बढ़ जाते हैं। जब आपने करंट जो बिल्कुल रिसेंट पेपर चाहिए हम सर। सर वैसे तो मैंने जितने अभी तक, कुछ जर्नल ऐसे हैं जिनकी रिस्ट्रिक्शंस हैं 35 या 30 वो कहते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस नहीं, लेंथ ऑफ पेपर की रिस्ट्रिक्शंस होती है। फॉर एग्जांपल वो कह देते हैं कि 12 पेजेस का पेपर हो। 12 पेजेस के पेपर में मोस्टली 1.5 पेज या 2 पेजेस तो रेफरेंसेस के आ ही जाते हैं। तो वो, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि जो जहाँ पे जरूरत नहीं है, रेफरेंसेस हम करते हैं, साइटेशन हम कब करते हैं, कब हम किसी पेपर को रेफर करते हैं या साइट करते हैं, जहाँ पे हम किसी का आइडिया यूज कर रहे हो या किसी की वर्डिंग यूज कर रहे हो, ताकि वो प्लेजराइज ना हो। ठीक है, सही सही। जब हम अपना ही लिखेंगे तो वहां पे हमें हर जगह पे साइट करने की जरूरत नहीं है। जहां पे सिंपल जरूरत है सिर्फ वहां पे ही करें, और अननेसेसरी पेपर्स को ना डालें तो अच्छा है। सही सही, बिल्कुल सही। सर हम ठीक है सर, सर थैंक हम यू सर। एट अ टाइम 1 या 2 जर्नल्स में अपना पेपर सबमिट करवा सकते हैं कि सिर्फ एक में ही कराना होता है? नहीं, ये एथिक्स के खिलाफ है। आपने डुप्लीकेशन कोई नहीं करनी। डुप्लीकेट सबमिशन एथिक्स के खिलाफ है, पब्लिकेशन एथिक्स के खिलाफ है। अस्सलाम वालेकुम सर। आपको एट द सेम टाइम एक पे ही करना है। जी सर। वालेकुम सर एक अस्सलाम। क्वेश्चन है मेरा। सर हम एक पेपर राइट अप करते हैं और उस पेपर के साथ उसके वर्क फ्लो के साथ हम चल रहे होते हैं, उसमें फिगर्स भी डाल रहे होते हैं, मेथोडोलॉजी और नंबर ऑफ पेजेस का भी हम ख्याल नहीं रखते, और फिर उसके बाद हम उस पेपर का स्कोप देखते हुए जर्नल्स को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब जनरल का स्कोप हमारे पेपर से मैच कर रहा है लेकिन रिस्ट्रिक्शंस और आ जाती हैं। एक तो ये अप्रोच है सर। एक दूसरी अप्रोच ये होती है कि हम पहले ही कुछ 3-4 जर्नल्स को सिलेक्ट कर लें, अपना स्कोप उससे वेल मैच करके पेपर को लेके चलें। तो ये कितना बेनिफिशियल हो सकता है कि एंड में?
एग्जैक्टली ये जो दूसरी अप्रोच है ये ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर मैं इस पे कमेंट करूं, उसकी वजह यह है कि जब आप जर्नल सेलेक्ट करेंगे तो आपकी कोशिश ये होगी कि आप उस जर्नल की हर चीज देख लें। फॉर एग्जांपल अथर्स गाइडलाइन तो मस्ट है। आपने एक जर्नल सेलेक्ट कर लिया कि ये मेरा टारगेटेड जर्नल है, इसमें मैंने पेपर भेजना है, तो आपने उस जर्नल की जो अथर गाइडलाइंस है वो कंप्लीट रीड कर ली होगी कि ये पेपर्स किस तरह का मांगते हैं, क्या इसमें ओरिजिनल आर्टिकल एक्सेप्टेड है या नहीं है, तो वो उसके लेंथ ऑफ पेजेस क्या है, उसके रेफरेंसेस क्या है, ठीक है। और इसके अलावा आप फिर उसी जर्नल की कुछ आर्टिकल रीड आउट करते हैं, तो जब आप आर्टिकल रीड करते हैं तो आपको आइडिया भी हो रहा होता है वहां से कि किस तरह के आर्टिकल ये मोस्टली एक्सेप्ट करते हैं, वो आर्टिकल में क्या चीज देख रहे होते हैं। जब आप किसी भी जर्नल के 5-6 आर्टिकल पढ़ लेते हैं तो आपको उस जर्नल का थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि इसमें मोस्टली वो पेपर में कौन सी मेन चीजें देख रहे होते हैं। तो आप भी अपना राइटअप स्टाइल, अपनी एनालिसिस, अपनी कंपैरिजन अकॉर्डिंगली स्टार्ट कर देते हैं, तो आपके एक्सेप्टेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो सेकंड स्ट्रेटजी है वो ज्यादा बेनिफिशियल है एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन, लेकिन जरूरी नहीं है हम फर्स्ट को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो अर्ली करियर रिसर्चर होते हैं या फैकल्टी मेंबर्स होते हैं जो गाइडलाइन नहीं ले रहे होते हैं, खुद से कर रहे होते हैं, वो पेपर लिख डालते हैं, उसके बाद भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, वो भी पब्लिश हो जाता है। लेकिन ये दूसरी ज्यादा बेनिफिशियल इस हवाले से जिस तरह मैंने डिस्कस की है। जी सर, थैंक यू। सर अब एक पेपर है, फॉर एग्जांपल कोई एल्गोरिथम्स हैं उसमें, और वो मैं उसको अपने पेपर में रेफर करना चाह रही हूँ, तो सर अब वो एल्गोरिथम एज इट इज मैं कॉपी पेस्ट अपने पेपर में करूंगी, या उसको उस आइडिया को मैं अपने वर्डिंग में अपने पेपर में लिखूंगी? अगर मैं एज इट इज कॉपी पेस्ट करके आगे साइट कर देती हूँ तो क्या ये प्लेजरिज्म में आ जाएगा, या मैं ऐसे कर सकती हूँ सर? इसको जरा। अच्छा देखिए, मोस्टली जो हमें अगर मैं बात करूं साइटेशन की कि हमने कहाँ पे रेफर करना है, तो मोस्टली होता यह है कि साइटेशन हमें रिक्वायर्ड होती है इंट्रोडक्शन में और लिटरेचर रिव्यू में। मेथोडोलॉजी में हमें कहीं कहीं पे जो अच्छे पेपर होते हैं, मैंने देखा है कि 2-3 ही उन्होंने पेपर मेथोडोलॉजी में साइट किए होते हैं। वो एक बेस पेपर होता है जिससे उनकी मेथोडोलॉजी बेस कर रही होती है, उसको साइट कर देते हैं, जिसको उन्होंने आगे एक्सटेंड किया होता है। जिस तरह मैंने विद इन प्रेजेंटेशन डिस्कस किया कि आप अपने लिमिटेशंस या नेगेटिव रिजल्ट्स को उसको हाइड ना करें, बल्कि उनको बताएं अपने पेपर में कि ये मेरे मेथोडोलॉजी की लिमिटेशन है। तो आपसे वो लिमिटेशन हल नहीं हो सकी, आपने उसको रिजॉल्व नहीं किया, किसी और को समझ आई, तो उसी पेपर को एज अ बेस बना के आगे लेके जाएंगे। सर कॉपी पेस्ट एग्जैक्ट कर सकते हैं, या हमने उसको अपनी वर्डिंग में लिखना है अगर हम उसको रेफरेंस ले रहे हैं? कॉपी मेथोडोलॉजी या एल्गोरिथम तो आप किसी का अगर आप अपनी वर्डिंग में भी लिख लें तो मेरे नजदीक ये प्लेजरिज्म है। अगर एल्गोरिथम मैंने एक डिजाइन किया है किसी भी एक टास्क को सॉल्व करने के लिए, आपने मेरा पेपर साइट कर दिया है, ठीक है, और आपने वही अपने अल्फाज में लिख दिया है, सारी चीजें वही है, सारे कंपोनेंट्स वही है, तो मेरे नजदीक तो ये प्लेजराइज्ड है। सर अगर हम आइडिया उनका तो रिव्यू लिख रहे हैं, मतलब 3-4 एल्गोरिथम्स का रिव्यू लिख रहे हैं, तो फिर हम उसको एज इट इज लिख रिव्यू सकते तो हैं? डिफरेंट वे है, रिव्यू तो डिफरेंट वे है। रिव्यू तो आप एक नॉवल वे से एग्जिस्टिंग लिटरेचर को आपने समराइज करना होता है। रिव्यू पेपर इज समथिंग डिफरेंट। मैं ओरिजिनल आर्टिकल की बात कर रहा हूँ। सर आप रिव्यू पेपर से रिलेटेड कुछ बता दें, क्योंकि आजकल उस पर काम चल रहा है। रिव्यू पेपर तो बजाते खुद एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो ये तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने कंसर्न सुपरवाइजर से कांटेक्ट कर लें, वो आपको बेटर वे में बता सकता है। लेकिन रिव्यू पेपर ये होता है कि उसमें तो आप हर किस्म की साइटेशन कर सकते हैं। उसमें तो आप कॉन्फ्रेंस पेपर भी अगर एक फ्लो में आपने कोई चीजें लिखनी है तो आप उसको भी साइट कर सकते हैं। दूसरा, रिव्यू पेपर में आपने मेथोडोलॉजी किसी की उठानी नहीं होती, उसमें तो आपने अपने अल्फाज में समराइज करना होता है। आपने उस मेथड की जो ड्रॉबैक्स है, जो लिमिटेशंस है, वो बतानी होती है, प्लस जो उसकी जो फ्यूचर डायरेक्शन है वो बतानी होती है। फॉर एग्जांपल एक पेपर है, उसने फ्यूचर डायरेक्शन बताई है, उस फ्यूचर डायरेक्शन को मजीद जो है उसको कैसे किसी और ने रिजॉल्व किया है। मजीद मैं चाहूंगा, मेरे साथ एक और मेरे एक्सपर्ट कोलीग है जो इस पे कमेंट करेंगे, तो मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो रिव्यू पेपर पे मजीद जो है वो थोड़ा सा कमेंट कर दें। सर थैंक यू।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, रिगार्डिंग रिव्यू पेपर बेसिक Okay, everyone. I think there is a technical problem with Dr. Khan's. शायद आज यहाँ सिटी में इलेक्ट्रिसिटी का भी इशू था, दैट्स वाई. तो वी हैव अ गुड डिस्कशन और रिव्यू अगर वो हमें ज्वाइन कर लेते विद इन अ मिनट और सो तो वी कैन कंटिन्यू विद द क्वेश्चन, और अदरवाइज वी विल हैव टू साइन ऑफ. और बिफोर गोइंग मैं आपको कहना चाहूँगा कि इफ़ यू कैन विजिट माय ऑफिस नेक्स्ट वीक तो आप अपना जो सीपीडी का सर्टिफिकेट है यू कैन कलेक्ट फ्रॉम मी. If you cannot visit my office next week or in next few days, then you can send your email address to Dr. Abdul Rahman Chishti Saab. He will then we can send you an e-certificate. Okay, तो अगर तो आप आ सकते हैं तो आप physically आप एक printed certificate ले लें. Otherwise you can receive an e-certificate on behalf of PEC. और most important thing ये है कि आपका जो database है PEC में उसका आपका point automatically add हो जाएगा on 1st of January. So even if you don't have any certificate, that you don't need to worry because वो point already आपके उसमें account में add हो जाएगा. So I think because of electricity problem, there has been some problem with Dr. Khan Bahadur Khattak. So thank you so much everyone for joining for this very interesting session. And if you have any question or any query, I will just place the Dr. Khan's email address in the chat box. You can contact him on his email address if you want to know anything else. So we'll keep the session on for like 1 or 2 more minutes so you can copy his email address. Otherwise I think that's all from our side, and thank you once again for joining, and hopefully you all can see his email address. Please note it if you want to know anything else, or and regarding the review paper, I think I think if someone knows Dr. Ali Qureshi, I'm writing his email address. You can contact him also. I think this is fine. Okay. So that's it from our side. Please note down the email address and send. Then in a minute we will close this window. Okay. Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir.